And this is the reaction. Yes, Pratham. Yes, Pratham. Don't worry. Don't worry. I'll be taking you through this reaction and then we will do a recap before going on to the theory part of alkanes. Okay, Pratham? Okay. So this is last reaction of alkane. Alkane segment का last reaction है. What is the name of reaction? The name of reaction is pyrolysis. Okay. Name of reaction is pyrolysis or cracking. Okay. Pyrolysis or cracking. Pyrolysis or cracking. So what do we expect in this reaction? Due to heat, we are expecting breakdown of, due to heat, we are expecting breakdown of carbon, hydrogen or carbon and carbon bonds. Okay students, carbon hydrogen और carbon and carbon bonds के बीच में हम लोग breakdown expect कर रहे हैं, ठीक है? This is understood? So if I go through this reaction at very high temperature, I can expect changes in the hydrocarbon. For example, if I give you propane, चलो ये देखो ये है reaction. If I give you propane, CH3, CH2, CH3, okay, this is propane. And if I heat this propane at a high temperature, around say 800 kelvins, 800 kelvins, आपके textbook में they've mentioned 773 kelvins. चलो, I'll take this as my heating temperature. Okay, students. So if I heat this mixture at 773 kelvins, when I say 773 kelvins, how many degrees Celsius do I mean? 500 degrees Celsius. 500. Very good. 500 degrees Celsius. 500 degrees Celsius. So what will happen, students? What do I expect in this case? I expect breakdown of CH bond or CC bond. Where do I have CC bond? I have carbon-carbon bond over here or over here. Am I correct? Am I correct, students? Please confirm. Yes, sir. Okay. Where do I have CH bond? चलो पहले CC बॉन्ड को ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? पहले कार्बन कार्बन में से कोई भी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता है, so what do I get in return? I'll get something like this. ये देखो, alkene will be formed. Alkene will be formed and a smaller alkane will be formed. ठीक है, क्या बोला मैंने लाइन? One alkene and a smaller alkane. Over here I have propane. Check करो propane. So if propane will undergo cracking, that is carbon carbon double bond जब break होगा, sorry, carbon carbon bond जब break होगा, I will get two products. One will be alkene and the other one will be a smaller alkane. So over here I can write like this, students. CH2, CH2, and then I'll write plus sign, and then I'll put CH4. Check karo if this is correct or not, students. Match the number of hydrogens also. Match the number of hydrogens and match the number of carbons. What I've done is I have broken the propane into two products. One is alkene and one is alkane. I already had alkane in my reactant. How many carbon containing alkane? 3 carbon containing alkane. I'll break that 3 carbon containing alkane into 2 plus 1. Okay, students, different combinations are possible. This is the basic alkane that I've taken. If I move on to butane, suppose if I take butane as my reactant, then accordingly different combinations will be formed. Is this part understood? Yes, students, quickly confirm Yes, me. sir. So Yes. one alkene will be formed and one alkane will be formed. Both will be smaller. Like a example, we have 3 carbon containing reactant. So in product I have 2 carbon containing product and 1 carbon containing product. One has to be alkene. Okay, now another option is over here I have carbon carbon breakdown, students. Carbon carbon bond का मैंने breakdown किया. Now what I'm going to do is I'm going to break carbon hydrogen bond का. I'm going to do breakdown. Okay? So this is very simple. This is very simple. Let me put an arrow first. So for example, I have carbon hydrogen bond over here in this case and also in this carbon. So what I'll do is
I'll write CH3 CH double bond CH2 plus H2. Check karo students. Check karo. Is this understood? When I'll break carbon hydrogen bond, in that case only one alkene will be formed and plus hydrogen would be released. In this case, alkane will not be formed. It is simple students. It is simple reversal of first synthesis method. Do you all agree with me? जो हमने पहला synthesis method किया था, उसका simple reversal है. Check करो. Yes, sir. हमने first synthesis method में क्या किया था? Alkene plus hydrogen gives me alkane. And यहाँ पे मैंने क्या किया है? Alkane gives me alkene plus hydrogen when it is heated at very, very high temperature. Is this clear, students? Yes, sir. Okay, shabash. Please note this down quickly. There are two possibilities. Either we make carbon-hydrogen bond or carbon-carbon bond. And this is happening at high temperature. Please note this down quickly in your books. And let us take another example. एक और example लेते हैं इसके. तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको बुक में. Let us take another example, students. And yes, one more thing is very, very important over here. You have to write oxygen in absence of oxygen. Okay, so oxygen is absent while we are doing this reaction. There is no supply of oxygen. Otherwise, क्या हो जाता बताओ मुझे. अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई दे दूं तो प्रोडक्ट्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स? Can anybody answer me? If I provide oxygen over here, which products can I expect then? Which products can I expect then? H2O and hydrogen would be removed, there would be H2O, and if carbon would be there to CO2. Shabash. So carbon would be going ahead with O2 or oxygen, that is combustion reaction will follow, correct? Combustion reaction ho jaye, and that would result into CO2 surely. चलो done with the reaction students. Reaction हो गया. अभी एक टेक्स्ट बुक का आपके एग्जांपल कर लेते हैं. टेक्स्ट बुक में कौन सा एग्जांपल दिया है वो ले लेते हैं. ठीक है, ओके. चलो, I have been given in your textbook, they have given example of hexane. Okay, so CH3 CH2 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 and CH3. Okay, this is N-hexane. Common name will be N-hexane. IUPAC will be, who will tell me IUPAC? Who will tell me IUPAC? Hexane. Hexane is right answer. Well done. Hexane. If I put N, what is the meaning of N, students? What do I mean by this? Straight chain. It is a straight chain. Very well done. This is common naming system. And just hexane will be my IUPAC naming system. Correct? Now what I'll do is, I'll heat this mixture in absence of oxygen. In absence of oxygen, I'll heat it at 773 kelvins or 500 degrees Celsius. ठीक है? So how many combinations will I get? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 773 kelvins. ठीक है, 773 kelvins. 773 kelvins, and these are my options. So first option, you tell me students, just break the hydrogen bond. खाली hydrogen bond break कर. So आपको क्या आंसर मिलेगा? You have hexane as reactant. Just break carbon hydrogen bond. तो आंसर क्या मिलेगा? Hexene plus H2. करेक्ट है, हेक्सीन मिलेगा. राइट स्टूडेंट्स, आई विल गेट हेक्सीन. यू विल आस्क मी सर कौन से दो कार्बन से ब्रेक करना चाहिए? सो प्रेफरेबली आई विल ब्रेक फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बन्स.
but that doesn't matter over here. Okay, you can just write alkene. So alkene आप कोई भी लिख दो, hexene अब simple hexene भी लिख सकते हैं अपन. So you can write it in this pattern also. आपके textbook में they have mentioned condensed form. That means which bond would be broken is not relevant. Okay, कौन सा bond break होगा वो इतना ज़्यादा significant नहीं. But still what we can do is we can break the first and second carbon के बीच में bond. Or else we can just write like this. C6 and H. First let me remove one hydrogen. So एक hydrogen तो बाहर चला है ना. So how many hydrogen would be left, students? What would be the molecular formula for hexene? C6H. H कितना आएगा? H12. 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 है ना. C6H14 would be for hexane. C6H12 would be for hexene. Correct? CnH2n. CnH2n. खाली इतना ही फॉर्मूला है. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे चेक करो. इसके बाद हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे. सो नेक्स्ट आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव अ स्मॉलर अल्केन. याद आ रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है. सपोज आई प्लान टू ब्रेक दिस कार्बन ओवर हियर. कौन सा ये बॉन्ड सपोज मैं ब्रेक करता हूँ. स्मॉलर अल्केन आपको ब्रेक करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. Either you remove methane or you remove ethane. So if I plan to remove ethane over here, ethane मैं remove करता हूँ. ठीक है. So what I'll get is this is my ethane C2H6. Smaller alkane आपने निकाल दिया. Smaller alkane आपने निकाल दिया. तो बचेगा क्या? alkene बचेगा. Correct students? एक बार try करो अब. If I remove this, what I'll get in return? Students check करो. What I'll get in return? So I'll write like this. C4H8. Correct है. Carbon and then carbon and then carbon and carbon. Correct है students? Let me put a double bond first. Alkene बना दिया मैंने. Now I'll balance with the number of hydrogens. ठीक है. Number of hydrogens मैं balance कर देता हूँ. So simply I'll put like this: CH3, CH2, CH and CH2. This will be my product. Check करो C4H8. So this is what one is butene, one is ethane, one is butene, one is ethane. अगर आप ऐसे लिखते स्टूडेंट्स पेंटीन एंड मीथेन, ये भी एक कॉम्बिनेशन आपका आ सकता है. ठीक है. In your textbooks, if you have your textbook students, there is one slight mistake in your textbook. इस केस में मिस्टेक हुआ है 238 पेज नंबर पे. पेज नंबर 238 if you want to correct. So जो सेकेंड रिएक्शन दिया उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया वहाँ पे. Instead of C4H8 they have written C6H8. तो उसको C4 आपको कन्वर्ट करना. ठीक है. चलो सर पेज नंबर क्या है? 238. पेज नंबर 238 पे जाके लेफ्ट हैंड साइड लास्ट थ्री रिएक्शंस इफ यू सी इन दैट सेकेंड रिएक्शन में second option which they have given, they have written C6H8. It should be C4H8. Instead of C6H8, it should be C4H8. Okay. Okay, students. So these are the two combinations which I can write. I can write further combinations also. I'll write just two. That's it. You can break this product further also. Okay. Chalo, is this clear? This was very simple reaction. Pyrolysis type is done, student. And generally आपको fixed reactants ही देंगे. Generally they give you butane, pentane, इस तरह से देते हैं. But they will generally give you थोड़ा सा higher alkanes देंगे. Higher alkanes. मैंने आपको example लिया propane के साथ, correct? But generally they will give you higher alkanes like pentane, hexane, heptane. ऐसे alkanes आपको देंगे. एंड इसमें आपको खाली ब्रेक डाउन करना है प्रोडक्ट्स का. तो इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड आंसर नहीं है कि पेंटीन प्लस मीथेन ही आना चाहिए तो ये आपको राइट मिलेगा. इफ यू फॉर्म पेंटीन प्लस मीथेन, सपोज मैंने आपको हेक्सेन दे दी, रुद्राक्ष ने आंसर बोला कि पेंटीन प्लस हेक्सेन एंड हेक्सीन प्लस हाइड्रोजन, तो उसको भी राइट मार्क्स मिल जाएंगे. सपोज जिया ने लिखा, अगर मैंने हेक्सेन दिया, मैंने पूछा है पायरोलिसिस और क्रैकिंग, तो जिया ने आंसर दिया हेक्सीन प्लस हाइड्रोजन and the other combinations are butene plus ethane, so even she will get marks. ठीक है. So higher alkanes को बहुत ज्यादा high temperature पे जब हम हीट करते हैं, so different combinations हमको मिल सकते हैं as products. All right.
That marks the end of your reaction part with alkane, students. Sir, I have a small doubt. What about sir, in this oil reaction there would be no branch in or groups, functional groups? Okay, now we generally perform this reaction with straight chain alkenes. See, कैसा होता है कि ये जो reaction है pyrolysis cracking, इसको higher alkenes के साथ पढ़ा गया है, which अगर suppose branch रहा, तो immediately you will first break the branch to branch, if in case branch is present. ठीक है, तो that would be more prone to attack, that would be more prone to fission. Fission मतलब क्या, bond का breakdown. But generally the reaction is studied with the straight chain alkenes, and that too higher alkenes. And it releases alkene plus smaller alkenes. Smaller alkenyl alkenes, that is what I should say. Okay. Okay. So for Pratham, I will quickly, for all the students, not only Pratham, but बाकी students के लिए भी जिन्होंने ये lecture miss किया था last time. Students, I hope आपका वो जो link मैंने भेजा है हाइड्रोकार्बन्स का, आप उस link को follow कर रहे हो, because every lecture आपका upload हो रहा है. Every lecture gets uploaded on YouTube, so it is updated within 1 or 2 days or maximum 2 or 3 days. आपके lecture वहाँ पे आ जाते हैं YouTube पे, same playlist remains the same. So if you have subscribed to the channel and अगर आपने bell icon को press किया है, तो आपको हर subject का जैसे ही lecture upload होता है आपको मिल जाया करेगा. So make sure वो आप जरूर करो. Okay, I'll quickly revise the entire alkane के जितने भी reactions हमने अब तक किए वो quickly revise करता हूँ, and then I'll take you into the theory part of it. So आज हम alkane section पूरा खत्म कर देंगे. So that from next time we can start with alkene. Okay students. So हमने alkane section कैसे start किया था? We started alkane section with the synthesis part, है ना? So अब मैं पूरा alkane chapter इसी एक screen पे लिख डालता हूँ, ठीक है? So if I write alkane का synthesis students हमने कैसे कैसे किया बताओ मुझे? So first method of alkane synthesis was by using alkene. एल्कीन, करेक्ट. एल्कीन के साथ हमने क्या ऐड किया था? प्लस H2. कीप ऑन टेलिंग मी द आंसर स्टूडेंट्स, है ना? प्लस H2 किया था. एरो पे क्या लिया था हमने बताओ? एरो पे क्या लिया था हमने? NiPT, NiPT, temperature, room temperature. heat and room temperature. करेक्ट है, करेक्ट. NiPT/PD and heat If and room. and PT and PD, then room temperature. Correct है, correct है. Room temperature or heat. With Ni you will have to supply heat. With PT and PD you can perform the reaction at room temperature also. Okay, all of you have to switch on your camera students. All of you have to keep your camera on. Very good. चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? So next synthesis was by using alkyne. Remember, alkyne को यूज करेंगे. लेकिन इसको भी अपन यही बोलते थे, इसका भी नाम हमने वही रखा था, catalytic reduction, or I will say catalytic hydrogenation. Can all of you recollect this? सबको ये याद आ रहा है? alkyne से हम जाते थे यहाँ तक. If you want, I'll just put H2 over here so that you can recollect कि हम करते क्या थे. And यहाँ पे 2H2. I cannot write all the reagents because वो थोड़ा सा मिक्सचर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? कंजेस्टेड हो जाएगा. अब ये लेते हैं थर्ड रिएक्शन जो हमने किया था स्टूडेंट्स. थर्ड रिएक्शन, कैन आई राइट लाइक दिस स्टूडेंट्स? डू यू रिमेम्बर व्हाट डू आई मीन बाय दिस? Reduction. Alkyl halide. Alkyl halide. Very good. This is alkyl halide के लिए expression था ये, RX. R means alkane, R dash means alkyl. ये देखो स्टूडेंट्स, R dash का मतलब होता है alkyl, and for X I will say halide. So if you are given X2 somewhere, it indicates halogen. समझ में आ रहा है? X2 का मतलब क्या होगा? halogen. It can be Cl2, can be Br2, can be F2, can be I2. समझा? क्लियर ये? ओके, सो RX के साथ हमने क्या लिया था, याद आ रहा है आपको? ट्वाइस ऑफ H, 2 nascent hydrogen. Yeah. Now tell me the reagents which I had used to produce Zinc these and two. dilute dilute. Zinc and dilute HCl. क्या बात है? I can see at least 4 or 5 students are very actively saying these answers, but what about the rest? बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है कि याद नहीं आ रहा है? क्या इशू है? मुझे आंसर्स देते हो ताकि मुझे समझ में आए कि आपको याद है चीजें, है ना? पार्थ, आंसर्स देते रहना है, ठीक है? फिर
देन भाविका आंसर देते रहना है। स्विच ऑन योर ऑडियो एंड कीप और आंसरिंग मी। आई शुड अंडरस्टैंड कि आपको याद आ रहा है, ठीक है। अगर इफ इनकेस आपको याद नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी, डोंट वरी एट ऑल। मुझे आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला रिएक्शन वापस से मुझे बता दो, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिर से हमने अल्काइल हैलाइड यूज किया था, इफ यू रिमेंबर। एक और मेथड में हमने अल्काइल हैलाइड What यूज किया। synthesis? What synthesis? वेरी गुड, व्हाट सिंथेसिस, फॉर व्हिच वी यूज ट्वाइस ऑफ Twice of N. and dry Try ether. Try ether. शाबाश, well done, well done. Next, fifth method. Grignard's reagent. Grignard's Very good. synthesis. So again we had used Rx, which is alkyl halide, but in presence of N2 Magnesium and water. Remember this was two-step reaction, students. ये दो step reaction था, याद आ रहा है? शाबाश. So ये सारे एरो अल्केन की तरफ जा रहे हैं, चेक करो. That means हमने अल्केन बनाया. We made alkane by these methods. Now I'll write the arrow which will go away from the alkanes. That means we're going to react alkane. So ये blue arrow check करो students. ये देखो blue arrow अब दूर जा रहा है, मतलब alkane हम react करने वाले हैं. So alkane का हमने सबसे पहला reaction कौन सा देखा था students? halogenation. Halogenation. So I'll write X2 over here. Correct है, समझ में आ रहा है आपको? X2 में हम क्या ऐड करते थे? Either Cl2 या Br2. आपको मैंने I2 के साथ रिएक्शन नहीं सिखाया है. You will study that reaction in 12th standard. ठीक है, and F2 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे because reactions can be explosive. Therefore मैं F2 के साथ रिएक्शन नहीं करूंगा alkane का. क्लियर हो गया बात? Cl2 मैंने सिखाया, Br2 मैंने सिखाया, I2 के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, so we will need oxidizing agent. अगर मैं I2 के साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, I will need oxidizing agent. Okay students? So वो रिएक्शन आप 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे. अभी के लिए I can also say F2 के साथ रिएक्शन नहीं करना because it is an explosive reaction. So therefore we can avoid F2. But we will have to do this reaction in presence of UV light or simply heat. Next students, next arrow पे हमने क्या लिया? Combustion. Combustion. Very good. O2 के प्रेजेंस में उसको हीट भी किया था मिक्सचर को. नेक्स्ट रिएक्शन बताओ मुझे. Reforming reaction. Reforming और aromatization. Reforming और aromatization. Aromatizing. राइट है? हाँ शाबाश. So wait. Reforming को मैं थोड़ा स्पेस देकर लिखता हूँ. Reforming को add some space. So I'll use V2O5. Cr2O3. Correct. MO2O3. हाँ. So 10, C6 से C10 तक जो alkanes हैं उनको हम यूज करेंगे. Very well done. Very well done. And plus we will use, I'll use only one reagent over here. ठीक है students? मैं खाली एक लिखता हूँ आपके लिए. V2O5, then pressure and then temperature. ठीक है? P for pressure. Just for your revision. Al2O3. V2O5, Al2O3, Cr2O3 ये हम सब यूज करेंगे. तो Al2O3 Sir, Al2O3 is compulsory to write now with one reagent. Yes. Al2O3 हमने लिख दिया, alumina लिख दिया. And then we have the last reaction जो हमने आज किया, that is pyrolysis at 773 kelvins. करेक्ट है स्टूडेंट्स? ये सारे मेथड्स हैं जो हमने किया है अब तक एल्केन्स के लिए. एल्केन का सिंथेसिस भी हो गया, एल्केन्स के रिएक्शंस भी हो गए. ओके, एल्केन का सिंथेसिस भी हो गया, एल्केन के रिएक्शंस भी हो गए. ठीक है स्टूडेंट्स? चलो आगे चलूं मैं. शुड आई मूव अहेड? Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट अस मूव अहेड. सो नाउ लेट अस गो इनटू द एल्केन का थियरी पार्ट. स्टूडेंट्स थियरी पार्ट देखते हैं. सो एल्केन सेक्शन आज अपन खत्म करके let us try to move towards alkene also. So what are there in the theory parts? अपन क्या क्या sections पढ़ने वाले students? सबसे पहला आप segment पढ़ने वाले theory part में about the isomers. So alkanes show how many types of isomerism वो आप देखने वाले हो. So if you have your textbooks with you, ठीक है, काम करो, टेक्स्ट बंद करो, टेक्स्ट मत देखो वरना वहाँ पे आप यहाँ का वहाँ भागो. हमने स्टूडेंट्स अपने क्लासिफिकेशन तो कर लिया था. हाइड्रोकार्बन से क्लासिफिकेशन वी हैड ऑलरेडी डन. करेक्ट? Yes, sir. ओके ठीक है. सो अपन सबसे पहले करेंगे आइसोमेरिज्म एंड दैट टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. वी विल डू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सो फर्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म व्हिच इज सीन इन केस ऑफ alkene.
ठीक है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ एल्केन। सो एल्केन कौन सा आइसोमरिज्म दिखाते हैं? आंसर इज दे विल शो अस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल isomerism is shown by alkenes. What do I mean by structural isomerism? It means same molecular formula. ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसका मीनिंग लिखता, same molecular formula but different structural formula. ठीक है, same molecular formula but different structural formula. This is alkane isomerism. ठीक है, ये आइसोमेरिज्म होगा। आइसोमेरिज्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, देन मेटामर्स में भी आ जाए, बहुत अलग अलग आइसोमेरिज्म होते हैं। अभी के लिए आपको खाली मैं एक सिखाऊंगा, लेटर ऑन यू विल बी लर्निंग फ्यू मोर इन योर जीओसी चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इसको मैं इस स्टेटमेंट को लेट मी अप्लाई दिस स्टेटमेंट, लेट मी अप्लाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, सो आई विल रिमूव दिस, आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, you tell me if you have understood or not. Okay, so if in case I take suppose pentane, pentane, ठीक है, CH3 CH2 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 and CH3. Give me common name of this pentane, students. Common name. N-pentane. N-pentane, shabash. N-pentane is right answer. Let me write over here N-pentane. N-pentane, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, चेक करो स्टूडेंट्स, ध्यान देना, हाउ आई एम मेकिंग आइसोमर्स। ठीक है, प्लीज फोकस ओवर हियर। सो आई विल रिमूव दिस कार्बन, ये कार्बन यहां से निकाल के आई विल पुट इट ऑन दी सेकेंड कार्बन, यहां रख दूंगा। ऐसे आपको आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, सो व्हाइल डूइंग दिस आई विल ड्रॉ जस्ट कार्बन स्केलेटन फर्स्ट। ये देखो CH3, चलो मैं पूरा ही बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा बाद में बैलेंसिंग पार्ट। फर्स्ट आप खाली कार्बन बनाने का एंड बाद में हाइड्रोजन आप पुट करो। ठीक है, ये देखो ये रहा। सो इस कार्बन को उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। चेक करो स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई? सो स्ट्रेट चेन आपका छोटा हो गया। इंस्टेड ऑफ 5 कार्बन्स आई हैव जस्ट 4 कार्बन्स इन माय स्ट्रेट चेन। 1 कार्बन आई हैव पुट एज अ ब्रांच ऑन द सेकंड कार्बन। रिमेंबर, आप फर्स्ट कार्बन पे मत डालना वरना वो भी स्ट्रेट ही हो जाएगा, है ना। अगर कोई ऐसा ट्राई करता है, ये देखो स्टूडेंट्स, कोई ऐसा ट्राई करता है कि चलो मैं ब्रांच सेकंड नहीं फर्स्ट कार्बन पे ब्रांच डालूंगा, तो ये चेक करो आपको क्या मिल जाएगा। वैलेंसी बैलेंस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बताओ स्टूडेंट्स। डोंट यू थिंक बोथ ऑफ देम आर सेम? डोंट यू थिंक ये दोनों सेम है? चेक करो, है ना, ये दोनों सेम है। सो फर्स्ट कार्बन पे ब्रांच नहीं डालना है आपको, कहाँ डालना है, सेकंड कार्बन पे। सो यू पुट ब्रांच ऑन सेकंड कार्बन, है ना, सेकंड कार्बन ब्रांच डालो एंड आपको कार्बन चेन रिड्यूस कर देना है। इज दैट अंडरस्टूड? वेल डन रौनक परमार, वेरी वेल डन। आंसर इज आइसोपेंटेन, शाबाश। आंसर इज आइसोपेंटेन। यू कैन राइट डाउन द IUPAC आल्सो, आइसोपेंटेन। ठीक है, एक और ट्राई मारे, और भी कुछ बन सकता है सेम इतने ही कार्बन यूज करके, और कोई स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं? आप बताओ मुझे। Yes, sir. Cyclic. कौन सा? नियो, वेल डन, वेल डन। नियो वी कैन ड्रॉ स्टूडेंट्स, नियो ड्रॉ कर सकते हैं अपन। ये चेक करो कैसे ड्रॉ करूंगा। ये देखो मैं वापस से मैंने येलो बॉक्स यूज किया, इस कार्बन को भी उठा के सेकंड कार्बन पे डाल देते हैं। चलो ये काम अपन डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ सर। अब चेक करो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 and I'll have CH3 and CH3। सो लास्ट से कार्बन पिक करते रहने का, लास्ट कार्बन जो है उसको पिक करते रहने का एंड ये बनाते रहने का। सर ये समझ में आया? जो सेकंड रिएक्शन लिखा है वो हम लोग ने फर्स्ट से डिराइव किया है ना? करेक्ट है, करेक्ट है। मतलब देख तुझे मैं क्या बता रहा हूँ, स्टेप वाइज है क्या? फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ऐसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पार्ट, ऐसा नहीं है। तुझे खाली by using same number of carbons and by using same number of hydrogens you have to give me different structures which are possible। remember क्या लिखा था मैंने Yes. isomers के लिए? different structural formula
but same molecular formula. ठीक है, same molecular formula but different structural formula. Same molecular formula but different structural formula. Yes, Clear है? yes. So इसका आंसर क्या आएगा? नियोपेंटेन. क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका? नियोपेंटेन. इतनी बात क्लियर है? Yes, Please tell yes. me. Yes, please note this down, students. Note this down. Note this down quickly. जल्दी से note down करो इसको. And then you have to write isomers for hexane, butane, hexane, and heptane. ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जितने भी आइसोमर्स पॉसिबल है. पहले ब्यूटेन वाला सॉल्व करो. ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है? इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर. जैसे आप बोलते हो कि ये मेरा कजिन है, हम 3 कजिन्स हैं, वैसे ये लोग बोलते हैं हम 3 आइसोमर्स हैं. करेक्ट है? सो ब्यूटेन का मुझे बताओ हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल. देन ट्राई फॉर हेक्सेन, देन ट्राई फॉर हेप्टेन. ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तीनों का अलग अलग ट्राई करो. पहले बताओ मुझे ब्यूटेन के कितना पॉसिबल है, देन हेक्सेन पे चले जाओ, हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, देन हेप्टेन पे चले जाओ, बताओ कि हेप्टेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल. ऑलराइट स्टूडेंट्स? सब ब्यूटेन का एक ही पॉसिबल है. ओके ओके, ट्राई करो पहले ट्राई करो. एंड देन रेज योर हैंड वंस यू आर डन विद ऑल. आई एम वेटिंग फॉर यू. रेज योर हैंड वंस यू आर डन विद ऑल 3. ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन. ठीक है, लिख के ले लो कहीं पे, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन. हेक्सेन और थर्ड वाला क्या था? Heptane. हेप्टेन. ओके. हेप्टेन, हेप्टेन.
चलो स्टूडेंट्स, should we look into butane and hexane and heptane? स्टार्ट करें। सो सबसे पहले तो इफ आई हैव टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर ब्यूटेन, देखो यहाँ चेक करो स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। आई विल नॉट बी पुटिंग हाइड्रोजन्स, आई विल नॉट बी पुटिंग हाइड्रोजन्स, आई विल जस्ट बी शोइंग यू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन्स। सो अगर आपको ये समझ में आ गया कार्बन स्केलेटन को कैसे मैनिपुलेट करना है, देन आपको आसानी से ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से कैमरा ऑन कर लो वापस से सबके सब। कैमरा ऑन है आपके? हाँ, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, आई कैन रिमाइंड यू एवरी सिंगल टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, एवरीवन हैव देयर कैमरा ऑन। शाबाश मीत। Yes, students. चलो, so how should I go ahead with it? If I'm asked butane, students, ठीक है, butane, ये देखो इस तरह से आपको सोचना चाहिए। As a student, you should be thinking in this pattern. So butane, I have 4 carbons, 1, 2, 3, 4. पहले हाइड्रोजन का टेंशन मत लो, पहले कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करके चेक करो। ठीक है, ये हो गया 4। आप क्या करेंगे बताओ स्टूडेंट्स? लास्ट वाले को उठा के मैं सेकेंड पे डाल देता हूँ। ये मेरा ट्रिक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है टेक्स्ट बुक में कि इसको बनाना कैसे है। एंड विथ एक्सपीरियंस आप और अच्छे से बनाने लगोगे और क्विकली बनाने लगोगे। बट दिस इज हाउ स्टार्ट जनरल, दिस इज हाउ आई स्टार्ट जनरल। सो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 मैंने स्टेट बना दिया, देन व्हाट आई विल डू इज 1 2 3 बनाया और एक को बना दिया ब्रांच। अब बताओ इसको और जरा भी मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? कैन आई मैनिपुलेट दिस फर्दर? No, sir. No, sir. No, so only these 2 possibilities are there. ठीक है, सिर्फ इतनी ही 2 possibilities हैं अपने पास students. We have only these 2 possibilities. So N-butane, isobutane. Anybody has any doubt? Please ask me, students. Anybody has any doubt? आप सबको किस किस को ये दोनों स्ट्रक्चर मिल गए? Raise your hand. Raise your hand. Let me see. और अगर आपको कोई और भी स्ट्रक्चर मिला है तो यू कैन डिस्कस विथ मी। आप मुझे बता सकते हो कि सर मुझे ये वाला भी मिला है। सो लेट अस चेक कि आपको कुछ अलग मिला तो आई कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि वो सेम ही स्ट्रक्चर है। आपको लग रहा है अलग है बट स्ट्रक्चर सेम है। ओके, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। लेट अस मूव अहेड। सो यू कैन पुट हाइड्रोजन आल्सो स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन डाल दिए तो कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ नजर आएगा। इसका नाम मुझे बताओ, हु विल टेल मी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? N-butane, N-butane, वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस वन? isobutane, isobutane, वेरी गुड। चेक कर लो स्ट्रक्चर आपको सब सही लग रहे हैं? हाँ, दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट हैं? No, बोथ sir. स्ट्रक्चर्स आर No, करेक्ट? sir. क्या Sir, मिस्टेक है? isobutane में CH2 में CH CH, आएगा। only आएगा। CH. शाबाश 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 शाबाश। CH2 के बदले CH आएगा। ठीक है, ऐसा किसी ने मिस्टेक किया है क्या? प्लीज चेक करो आपके स्ट्रक्चर्स। ये वाला मिस्टेक किसी ने किया है? किया है? नहीं किया? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, वेल डन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर हेक्सेन, structural isomers for hexane, how you will approach? कैसा अप्रोच रहेगा अपना? चेक करो स्टूडेंट्स, देखो आपने भी ऐसे अप्रोच किया क्या? वो खाली मैच करो। ठीक है, सबके हाथ नीचे कर लो, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन स्टूडेंट्स। नाउ चेक। ठीक है, चेक करना है मतलब आपने भी ये सेम अप्रोच रखा था क्या? ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे आपने अगर स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया होगा तो आप टिक मार्क करते जाना उसको, जहां पे आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा उसको टिक मार्क करते जाना। ठीक है, सो फर्स्ट यू शुड गेट एन हेक्सेन, सबसे पहले तो एन हेक्सेन आ जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, चेक करो स्टूडेंट्स, इसको मैं ले जाऊंगा और ब्रांच बना दूंगा सेकेंड कार्बन पे। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, मेरा स्ट्रेचिंग एक कार्बन से कम हो गया और यहाँ है मेरा ब्रांच। चेक करो स्टूडेंट्स, इज दिस करेक्ट? है yes, ना? sir. नाउ स्टूडेंट सोच के बताना। ठीक है, सोच के बताना, कैन आई पुट दिस ब्रांच ऑन थर्ड कार्बन ऑल्सो? ये भी मुझे अलग स्ट्रक्चर दे देगा। थर्ड कार्बन पे भी डाल सकते हैं ना Yes, इसी sir. ब्रांच को। Yes, ये sir. देखो, अगर ऐसा मैं बोलूं तो आपको 1 2 3 4 5 सेम स्केलेटन बनाया, इंस्टेड ऑफ सेकंड कैन आई पुट इट ऑन थर्ड?
Yes, I can put it on third also. We can put it on third also. तो पहले एक कार्बन के साथ अच्छे से खेल लेने का, उसको कहाँ कहाँ रख सकते हैं, अलग कॉम्बिनेशन चेक कर लेने का, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब तक आपको ऐसे ही अल्केन्स मैंने दिए थे जहां पे ज्यादा कार्बन्स ही नहीं थे, सो आप उसको यहाँ वहां ज्यादा नहीं घुमा पाते, बट नाउ यू हैव ऑप्शंस फॉर योर ब्रांच प्लेसमेंट ऑल्सो. You can place your branch on different carbons, so you have potentially second carbon and third carbon. Now if you are thinking to put this branch on this carbon also, it will be same as this carbon. So इसके आगे मैं कॉम्बिनेशन नहीं बना पाऊंगा. ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखो, सपोज अगर मैंने ऐसे बनाया, आप बताओ ये कुछ अलग बात हो गई क्या? एंड बाय द वे कॉमन नेमिंग कंपल्सरी नहीं है, आयुपैक भी आ सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स में आयुपैक भी आ सकते हैं, ऐसा मत सोचना इसका कॉमन नेम नहीं है तो स्ट्रक्चर क्यों बनाए हम. ये देखो 1 2 3 4 5. इफ आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, इज इट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर? ये ऑलरेडी अपन ने कवर कर लिया है Already discovered. Same. ऑलरेडी. कौन सा स्ट्रक्चर कॉमन है? ये देखो, ये दोनों Second. कॉमन है ना. चेक करो दोनों का आयुपैक, चेक करो दोनों का आयुपैक, चेक करो, बोथ आर सेम स्ट्रक्चर्स. करेक्ट, बोथ आर सेम स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स. देयरफॉर टेंशन नहीं लेना है. इनिशियली आप ये मिस्टेक करोगे. किस किसने ये मिस्टेक किया है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, किसने किया ये मिस्टेक? कोई टेंशन मत लो, इनिशियली ये मिस्टेक होगा. सो दैट इज वेयर यू लर्न, दैट इज वेयर यू लर्न. ठीक है, कि अच्छा इन दोनों का तो आयुपैक सेम है, तो ये दोनों कंपाउंड सेम है. समझ में आया? जितना प्रैक्टिस करोगे, एंड माय एडवाइस टू यू इज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम ब्यूटेन टू एटलीस्ट ऑक्टेन, ब्यूटेन से ऑक्टेन एवरी डे एक एक बार प्रैक्टिस कर लेने का. तो आपसे ज्यादा फास्ट कोई भी आइसोमर्स नहीं बना पाएगा, आपसे फास्ट आइसोमर्स कोई नहीं बना पाएगा अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो 2-3 हफ्ते तक. ठीक है, चलो तो ये हटा देता हूं मैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, अब क्या करेंगे जब एक ब्रांच के प्लेसेस, ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक ब्रांच के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया, करेक्ट. सो नाउ लेट मी टेक वन मोर ब्रांच, एक और कार्बन को निकालता हूं मैं बाहर. सो आई विल कम बैक टू दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे आता हूं. And what I'll do is, what I'll have to do is, I'll have to remove this. ये देखो, ये मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से. I'll remove this and I'll put it. What I'll do is, I'll remove this carbon and I'll put it on the second carbon itself. वापस से यहीं पे लाके बिठा दूंगा. ठीक है, अब अपन सेकेंड कार्बन की बारी है, सेकेंड ब्रांच की बारी है. 1 2 3 4. Now my straight chain will become, instead of 5 it will become 4 because I have removed one more carbon. So ये कार्बन तो पहले से ही था. चेक करो स्टूडेंट्स, रेड वाला. I'll put my second branch now. ये देखो. Is this understood students? Is this understood? Please tell me. सर इसके बस 3 ही Yes, sir. पॉसिबिलिटी. Please tell me. हाँ, क्या बोला? सर या जो हम लोग एग्जाम बना रहे हैं उसके सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज है ना? नहीं 3 पॉसिबिलिटीज नहीं है, और भी हो सकती है. ये देखना मैंने अभी क्रिएट किया ना, ये फोर्थ वाला. सो तुझे क्या करना है पार्थ, यू हैव टू मेक श्योर कि तू सारे तू ट्राई कर, सब कुछ ट्राई कर. अभी देख, फर्स्ट अगर मैंने एक ब्रांच क्रिएट किया था रेड वाला कार्बन, नाउ व्हाट आई डिड इज आई रिमूव्ड वन मोर कार्बन फ्रॉम द एंड एंड आई एम मेकिंग दिस एज अ ब्रांच नाउ. सो कहां पे इसको प्लेस कर सकता हूं मैं? पहला तो ये पॉसिबिलिटी है, करेक्ट है. अब बता, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? अगर मुझे पार्थ बोलता है सर इन दोनों को ही कैन वी पुट इट ओवर हियर, ये देखो ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? बता पार्थ, इज दिस करेक्ट? ये कोई और स्ट्रक्चर है कि सेम हो गया ऊपर वाला ही? सर सेम ही है सर. हम सेम लोग है, जो सेम है, एकदम करेक्ट. ये सेम स्ट्रक्चर है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. नेक्स्ट Sir, but we can put one branch on the second carbon and one branch on- absolutely correct Vidisha, absolutely correct Vidisha. I am coming to that example. ठीक है, I just want to see कि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो क्या. ये देखो स्टूडेंट्स, what if I write like this? Is this different? Is this different compound? नो सर. No. Is this different compound? नहीं है ना, नहीं, ये different नहीं है. ठीक है, तो इसमें टेंशन मत लेना. अब आते हैं विदिशा के एग्जाम्पल में. सो अब मैं क्या करूंगा, विधि बोलेगी सर आपने ग्रीन वाला कार्बन सेकंड पे डाला, वो तो सही है, मतलब दिस स्ट्रक्चर इज राइट, एकदम करेक्ट. बट कैन वी चेंज द प्लेस ऑफ ग्रीन वाला कार्बन? यस, वी कैन डेफिनेटली चेंज इट्स प्लेस. सो आई कैन डू दिस वन आल्सो. ये चेक करो स्टूडेंट्स, अब दिस इज डेफिनेटली न्यू.
करेक्ट है, ये डेफिनेटली न्यू है ना स्टूडेंट्स? बताओ मुझे। हाँ सर। Yes, sir. That's it. So these many combinations you can have, these many isomers you can have. Okay students, किस किस को ये सब मिला? ये पांचों किस किस को मिला? Raise your hand. Arnav. Okay. विदिशा, नहीं मिला पांचों? No, sir. Okay, later on you realize that this is also possible. Yes. Okay, what about you here? Here and Jia, Harsh, Arya, Meet Soni. What about you people? Bhavika, Harshit Panchal. What about you students? आपको मिले कितने isomers मिले? Bhavika, how many isomers you got? Sir, I got the second and third only. I didn't do the fourth and fifth. हाँ, first तो सबसे पहले तो first one you started with the first one, right? Then you got the Yeah. second and third. Okay. Second and third. So you didn't execute second branch wala structures, है ना? Very good, no problem. So this is how you learn students. This is how we learn. We start putting one more branch and we start manipulating with the second branch also. Okay, चलो. I'll move ahead with the next concept now. Isomers, I hope आपको समझ में आ गया. हाँ, कुछ doubt है अर्नव? नहीं मैं नेमिंग बोल रहा हूँ सर। क्या? अच्छा, naming. Okay. ठीक है. Naming तो I'll avoid naming. आप naming अपने हिसाब से करो students. I'll go on to the next concept now. My next concept would be, if I go by your textbook, we are going on to the next concept now students. ये अपना एक structural isomers वाला concept हो गया, ठीक है? Structural isomers वाला concept हो गया अपना. Now I'll be going on to the conformers, also known as conformational isomers, or they are known as rotamers. So अब क्या इसमें अलग हम देखने वाले हैं वो बात समझ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है. सो एल्केन्स में कन्फर्मेशंस कितने होते हैं? ये देखो, ये कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग कंसेप्ट स्टूडेंट्स. कन्फर्मेशंस की अपन पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है? कन्फर्मेशंस इन एल्केन्स, कन्फर्मेशंस इन एल्केन्स. कन्फर्मेशंस मतलब क्या? कन्फर्मेशन मतलब क्या स्टूडेंट्स? कि आप कैसे एक दूसरे को अपन मैनिपुलेट करते हैं. मतलब आप एग्जांपल लेता हूँ, चलो एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? यू पीपल टेल मी इफ यू अग्री विद दिस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है? एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू बी कीप योर कैमरा ऑन. एवरीवन प्लीज कीप योर कैमरा ऑन स्टूडेंट्स. आई हैव टू सेट अ रिमाइंडर नाउ. हर 10 मिनट बाद आपको एक मैसेज जाना चाहिए, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन. अदरवाइज आप लोग मानोगे नहीं, आप लोग कैमरा ऑफ ही करते रहोगे बार बार. ठीक है. नाउ जैसे मैं बोलूंगा आपको वैसे वैसे बैठना है, ठीक है स्टूडेंट्स? यू हैव टू सिट अकॉर्डिंगली. जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको बैठना है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबके सब ऐसे बैठेंगे, हैंड्स फोल्ड करके, एकदम प्रॉपर. हैंड्स फोल्ड करो दोनों एंड सावधान पोजीशन में प्रॉपरली एकदम अलर्ट होके बैठना है. चलो फटाफट सबके सब, एवरीवन फोल्ड योर हैंड्स एंड सिट इन अलर्ट पोजीशन. प्रॉपरली अलर्ट पोजीशन में बैठना है, जल्दी जल्दी. एवरीवन 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 एवरीवन. यस, वेरी गुड. आप मुझे दिखने चाहिए कैमरा में. हर्ष, आई कैन नॉट सी यू प्रॉपरली. हाँ, गुड, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट. दिस इज योर वन कंफर्मेशन. आप ऐसे भी बैठते हो. आप ऐसे कब बैठते हो स्टूडेंट्स? आप ऐसे कब बैठोगे बताओ मुझे? अगर सपोज आपका टीचर आपके सामने बैठा है, आपको वाइवा ले रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है ना स्कूल में, और मे बी यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल, और मे बी यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू. सो आप ऐसे प्रॉपरली बैठोगे, है ना? इरेक्ट पोस्चर रहेगा आपका एंड अलर्ट पोस्चर, वेरी वेरी एक्टिव. इट इंडिकेट्स कि यू आर अलाइव, है ना? इट इंडिकेट्स कि यू आर अवेक, यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द कंडीशंस. नाउ आई वांट यू टू बी रिलैक्स्ड. आराम से बैठ जाओ. चलो सबके सब आराम से बैठ जाओ. आराम से कैसे बैठोगे? रिलैक्स, रिलैक्स बैठ जाओ. रिलैक्स और एकदम एक्टिव स्टेट में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना. आई शुड मेक आउट कि हाँ अब आप रिलैक्स्ड हो. देखो रुद्राक्ष का दोनों सेम पोजीशन था, इज ऑलरेडी इन अलर्ट पोजीशन. ओके, रिलैक्स हो गया. जब अपन रिलैक्स हो तो अपन आराम से ऐसे भी फॉल डाउन, है ना? आराम से बैक सपोर्ट ले लो, एकदम चिल्ड आउट. अगेन
Again, erect posture. Quickly. Erect posture. Everyone. एकदम जल्दी से. भाविका, फर्क दिखना चाहिए मुझे दोनों में. So भाविका का एकदम erect posture कैसा है without smile, and relaxed position with smile. Otherwise everything is same. चलो हर्षा. शाबाश. Again relaxed. Everyone relaxed. Meet Soni, relax. क्या बात है. Very good. शाबाश विधि. ओके. चलो स्टूडेंट्स. सो ऐसा ही कुछ कार्बन्स के साथ भी होता है. ठीक है, ऐसा ही कुछ कार्बन्स के साथ भी होता है. सो आपके ये दोनों फॉर्म्स को मैं क्या बोलूंगा पता है? आई विल से कि दीज आर योर टू कन्फर्मेशंस. कन्फर्मेशंस आपके ये दो कन्फर्मेशंस थे. पहला कन्फर्मेशन था जहां पे यू वर अलर्ट, एंड सेकंड कन्फर्मेशन है जहां पे यू वर रिलैक्स्ड. बात समझ में आया स्टूडेंट्स? सो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों स्टेट को अपन क्या बोलते हैं? सेम मैं वर्ड यूज करूंगा. जैसे मैंने बोला था कि आप और आपके भाई, सपोज आपका भाई आ गया, आपके चाचा का लड़का, चाचा की लड़की आ गई, तो आप क्या बोलोगे? मैं और ये, हम दोनों कजिन्स हैं. तो वैसे ही आपके ये दोनों पोस्चर्स आपको क्या बोलते हैं पता है? आपका अलर्ट पोस्चर एंड आपके रिलैक्स्ड पोस्चर आपको क्या बोलते हैं? कि वी टू आर कन्फर्मर्स ऑफ ईच अदर. confirmers of each other. ये दोनों एक दूसरे के confirmers हैं, एंड दोनों को एक साथ हम बोलेंगे confirmations. These are two confirmations and they are confirmers of each other. Are you understanding these terms? Raise your hand if you are understanding, students. आपको समझ में आया मैं कैसे इनको यूज कर रहा हूँ? I was studying isomers. So isomers में ये एक concept आता है, confirmers. एक बहुत ही बड़ा concept है stereoisomers, but I'm not entering that concept बिकॉज वो बहुत ज्यादा बड़ा है. अभी आपको उसका सब कुछ है नहीं, तो मैं इसलिए आपको डिटेल में नहीं लेकर जा रहा हूँ. आई एम डायरेक्टली गोइंग टू ऑन टू द पॉइंट. स्पेसिफिकली पॉइंट पे जा रहा हूँ मैं सीधा. इफ यू हैव अंडरस्टूड यू हैव टू रेज योर हैंड स्टूडेंट्स. लेट मी नो यू हैव अंडरस्टूड. Sir, I have a doubt. यस सर. नाउ Sir, confirmers as in मतलब एग्जांपल दो ना, लोगों को समझा नहीं है सर. मैं आता हूँ एग्जाम्पल पे भी आता हूँ, और अच्छे से आता हूँ एग्जाम्पल पे. ठीक है, और अच्छे से एग्जाम्पल पे आता हूँ. नो, डोंट वरी. अभी के लिए दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ अर्नव. These are two forms of अर्नव. अर्नव के ही दो फॉर्म्स हैं. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस. 3 dimensional अरेंजमेंट चेंज होता है. ठीक है, एक बार अर्नव ऐसे खड़ा है, एक बार अर्नव ऐसे खड़ा है. समझ रहा है? ऐसे क्या फर्क है? अभी भी मेरे 2 हाथ हैं. इफ आई एम लाइक दिस, अभी भी मेरे 2 हाथ हैं. समझ में आ रहा है? सो my spatial arrangement will change. SPATIAL. My spatial arrangement will change, but my components will remain same. Understood अर्नव? मेरे components same रहेंगे, उतने ही कार्बन, उतने ही हाइड्रोजन, बट मुझे अरेंज कैसे किया गया है वो चेंज हो जाएगा. सो ये दोनों अरेंजमेंट को बोलेंगे दो कन्फर्मेशंस. एक ऐसा कन्फर्मेशन, एक ऐसा कन्फर्मेशन. सो दिस इज हाउ आई अरेंज माई सेल्फ इन स्पेस. क्लियर है अर्नव? Yes, है ना? sir. ओके. अभी ये और अच्छे से समझने के लिए आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ इथेन स्टूडेंट्स. मैं इथेन का एग्जांपल ले लेता हूं. ठीक है, सो सपोज अगर अपन इथेन का स्ट्रक्चर पढ़े स्टूडेंट्स, कन्फर्मेशंस पे अपन आ रहे हैं. ठीक है, एज आई सेड you trust me on this students. अगर आप मेरे साथ एक्टिव नहीं रहे, अगर आप मेरे साथ मेरे आंसर्स नहीं दिया, आपने मेरे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपने नहीं दिया, अगर आप मेरे साथ एक्टिव नहीं रहे, तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा. दिस इज माय गारंटी. ओके, दिस टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच ऑफलाइन ऑल्सो. ऑफलाइन बच्चों को नहीं समझ में आता है. सो ऑनलाइन की तो बात ही अलग है. सो ऑफलाइन में अगर नहीं समझ में आ रहा है, टफ है, तो ऑनलाइन सोचो कितना टफ होगा. वेयर आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, सो वो कनेक्शन एक ऑलरेडी नहीं है अपने पास. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका अलग से जो गेम चालू है, स्विच ऑन स्विच ऑफ कैमरा वाला, वो भी एक गेम अपने को हैंडल करना है. आपका वहां भी तो फोकस है ना एक, एंड आपको यहाँ फोकस करना है. सो मेरे साथ एक्टिव रहो, मुझे आंसर्स देते रहो बार बार. जब मैं कुछ पूछूं तो मुझे जरूर रिप्लाई करो. सो दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड. ओके, ठीक है. चलो एग्जाम्पल लेता हूँ.
सो इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ ईथेन स्टूडेंट्स, ईथेन का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दिस इज वन कार्बन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक कार्बन है, ये देखो, ये रहा मेरा एक कार्बन। ईथेन अपन कैसे लिखते हैं? अगर मैं पूछूंगा अर्नव को कि अर्नव ईथेन कैसे लिखेगा, अर्नव बोलेगा सर ऐसे लिखूंगा ईथेन। इज ही करेक्ट और इज ही रॉन्ग स्टूडेंट्स? करेक्ट है वो कि रॉन्ग है वो? करेक्ट। रिप्लाई करते रहो, मुझे रिप्लाई करते रहो सबके सब। एवरीवन कीप ऑन रिप्लाइंग मी, बी एक्टिव, बी एक्टिव। Correct. इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आई आस्क द सेम थिंग टू, मैं सेम चीज सेम क्वेश्चन पूछूंगा विधि को, सेम क्वेश्चन पूछूंगा विधि को कि विधि तू बता ईथेन कैसे लिखते हैं। विधि ने बोला कि लेट मी डू समथिंग डिफरेंट, सो विधि बोलेगी सर ईथेन आप प्लीज ऐसे लिख दो। विधि करेक्ट है कि रॉन्ग है? Correct. विधि करेक्ट है। Correct. विधि ने पहले खुद ही रिप्लाई कर दिया मैं करेक्ट हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई फील आई एम करेक्ट। वेल डन विधि। नेक्स्ट आई आस्क द सेम थिंग टू सोहम, मैंने सोहम को पूछा कि सोहम तू बता ईथेन कैसे लिख सकता है। सोहम ने भी अपने को एक ऑप्शन दे दिया स्टूडेंट्स। सोहम ने बोला कि सर ऐसे लिख सकते हैं अपन ईथेन को, ये देखो, ये देखो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया बात? ये समझ में आ गया? सो ये डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स है, इनको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसी में अब कंसेप्ट आ रहा है कन्फर्मेशंस का। जैसे आप तीनों ने मुझे आंसर दिया कि तुमको ऐसे ऐसे रख सकते हैं, अब सोहम ने मुझे ये आंसर दिया। एंड नाउ अब अपन तो, अगर मैं आपको पूछूं कि और कोई तरीका इथेन लिखने का, तो मीत सोनी मुझे क्या बताएगा? मीत सोनी मुझे बोलेगा कि सर एक और तरीका है इथेन को लिखने का। मैं बोलूंगा क्या तरीका है? तो मीत ये मुझे आंसर देगा। मीत बोलेगा पहले तो एक बॉन्ड बना लो। कौन सा बॉन्ड है ये? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, ठीक है। इथेन में दो कार्बन होते हैं, एक कार्बन सपोज रेड सर, एक कार्बन है ब्लू, है ना। दो तरीके और हैं, मीत ने बताया मुझे, एक कार्बन है रेड, एक कार्बन है ब्लू। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? अब मीत क्या बोलेगा? मीत बोलेगा सर मैंने सोहम का स्ट्रक्चर देखा और उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि एक और दो और पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने बोला कौन सी दो पॉसिबिलिटीज? तो मीत बोलता है पहले तो आप बॉन्ड बना लो, चलो फटाफट से आप बॉन्ड बना लो, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लो, क्रिएट कर लो। मैंने क्रिएट कर लिया कार्बन कार्बन बॉन्ड, चलो खाली इस पे फोकस करो, चलो सिर्फ एक पे फोकस करो स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस ऑन ओनली वन। ओके, नाउ मीत क्या बोलेगा कि सर रेड वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स डाल दो, रेड वाले कार्बन को उसके 3 हाइड्रोजन्स दे दो। दे दे स्टूडेंट्स? आप बताओ, 3 ही हाइड्रोजन मिलेगा ना रेड वाले को तो, एंड Yes, sir. सेम ब्लू वाले को भी 3 मिलेगा। प्लीज कीप ऑन आंसरिंग मी। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। सो मीत ने क्या बोला? मीत ने बोला सर वाई शेप में बनाना, वाई शेप। तो मैंने बोला ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स मैंने कैसे किया, एच देन एच एंड देन एच। दिख रहा है आपको वाई, ऐसा कुछ वाई बनता हुआ नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको दिख रहा है वाई? शाबाश। देन मीत ने बोला कि चलो अब एक काम करो सर, अब आ जाओ ब्लू वाले कार्बन पे, एंड ब्लू कार्बन को भी अपन 3 हाइड्रोजन दे देते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, अगेन वाई बनाने बोला उसने मुझे, एच एच एंड एच। चेक करो मीत के स्ट्रक्चर में सोहम के स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क है क्या? प्लीज चेक करो। नो। No, इज sir. देयर एनी डिफरेंस? नो नो No, sir. नो। बट लुक एट द स्मार्टनेस। अभी मीत कैसे स्मार्टली इसको चेंज करेगा? मीत ने बोला एक तो ये तरीका है। नेक्स्ट याद आ रहा है आपको? आपने जो अभी प्रैक्टिस किया स्टूडेंट्स, इरेक्ट पोस्चर, रिलैक्स पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर, रिलैक्स पोस्चर, है ना। आपने वहीं पे बैठ के खाली आपने चेंजेस किए। आपने ऐसा कुछ नहीं किया एक हाथ निकाल के फेंक दिया अपना, मेरे पास एक ही हाथ है, या आपने बोला कि चल आपके बाजू में आपका भाई बैठा कि ला तेरा एक और हाथ मेरे को दे दे, मेरे पास सर 3-3 हाथ। ऐसा तो आपने नहीं किया ना। मैं हाइड्रोजन निकालने वाला हूं ना मैं हाइड्रोजन ऐड करने वाला हूं, बट ये सेम स्ट्रक्चर को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। सो मीत सोनी ने मुझे ये स्ट्रक्चर बताया विच इज सिमिलर टू सोहम स्ट्रक्चर। अब रुद्राक्ष क्या बोलेगा? सर 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 मेरे पास एक और ओपिनियन है। मैं बोलूंगा हाँ बोल रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या बोलेगा? व्हाट इफ आई कैन रोटेट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड? व्हाट इफ आई कैन रोटेट रोटेट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड? ट्राई करो रोटेट करने का स्टूडेंट्स। इफ आई कैन रोटेट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर एक ही जब बीच में है कार्बन, देखो ऐसा कुछ बॉन्ड है सपोज, ये देखो ये दिख रहा है आपको, एक ही बॉन्ड खाली, 2 कार्बन के बीच में एक, तो कहना इससे कि कार्बन कैन बी रोटेटेड। एक कार्बन को मैं रोटेट कर सकता हूँ। इफ आई कीप वन कार्बन कांस्टेंट, कैन आई रोटेट बॉन्ड दिस बॉन्ड? ऐसे कुछ ऐसे रोटेट कर सकता हूँ मैं। चेक करो along this axis, can we rotate this? है Yes, ना? sir.
सो रुद्राक्ष ने ये वाला सोचा और रुद्राक्ष ने देखो क्या स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको समझ में आया तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। ये रहा कार्बन, रुद्राक्ष ने बोला कि सर मैं रेड वाले कार्बन को रोटेट करना चाहता हूँ, ब्लू कार्बन मेरा वैसे ही रहेगा। सो अपन रोटेशन कैसे बताएंगे, बाय मूविंग हाइड्रोजन्स। अगर मैं हाइड्रोजन्स मूव कर दूं तो मैं रोटेशन बता दूंगा, ठीक है। एच एच, ये तो एज इट इज रख दिया मैंने, कोई चेंज नहीं किया, वाई शेप में ही है, वाई शेप में ही है। ब्लू वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स वाई शेप में ही है। सबको दिख रहा है ये? रेजो हैंड स्टूडेंट्स, Yes, sir. रेजो हैंड। ब्लू वाले कार्बन के कंफर्मेशन में कोई चेंज, ब्लू वाले कार्बन के कंफर्मेशन में कोई चेंज किया, नहीं। ब्लू वाले कार्बन की कंफर्मेशन में कोई चेंज किया हमने? नो चेंज, है ना भाविका? एनी चेंज? नहीं। जय मेहता, यहाँ ध्यान दे रहा है तू? Yes, sir. हाँ, कोई चेंज हुआ कार्बन के कंफर्मेशन में? रेड वाले No, sir. कार्बन कंफर्मेशन में कोई चेंज किया मैंने? No, sir. शाबाश। मेरा क्वेश्चन था ब्लू वाले के रिगार्डिंग और तू आंसर दे रहा है रेड वाले के रिगार्डिंग। सर मेरा ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी सर। हाँ, मुझे दिख गया वो ध्यान तेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो मैसेज मत रीड कर, यहाँ पे मेरा ध्यान दे। यस सर, सॉरी। हाँ, लेक्चर चालू है तो यहाँ ध्यान दे। तू नीचे देख के हंसी मजाक कर रहा है, मस्त स्माइल कर रहा है तू मैसेज पढ़ पढ़ के, ठीक है। फोकस ओवर हियर। So blue वाले कार्बन का कंफर्मेशन सेम है स्टूडेंट्स, देयर इज नो चेंज। दैट इज व्हाई आई से यू हैव टू बी एक्टिव विथ मी स्टूडेंट्स। इफ यू आर थिंकिंग कि आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, खाली आपने कैमरा ऑन कर दिया, आप लेक्चर में हो और आपका कहीं और चैटिंग वीटिंग चालू है, दिस वुड बी वेस्ट ऑफ योर टाइम। माय सजेशन डोंट अटेंड द लेक्चर। अगर आपका ऐसा कुछ मन कर रहा है आप लेक्चर मत अटेंड करो। आप जिससे चैट कर रहे हो उसको तो जस्टिफाई करो, बेचारे को या बेचारी को, जो भी है वो, कम से कम उसको तो लगे हाँ मुझे मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है। ना आप वहां ध्यान दे रहे हो ना आप यहाँ ध्यान दे रहे हो। तो आप इनजस्टिस तो दोनों के साथ कर रहे हो ना, केमिस्ट्री के साथ भी और आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड, आपका स्लैश आपकी, जो भी है। सो मेक श्योर कि यू फोकस ओवर योर नाइसली इन द लेक्चर स्टूडेंट्स एंड बी अश्योर्ड, इस बात का पूरा आप गारंटी ले लो कि अगर आपने लेक्चर के दौरान आप चैट बॉक्स में मैसेजेस पढ़ रहे हो और आपका कैमरा ऑफ है तब तो कोई बात नहीं है। कैमरा ऑन है तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये समझ जाने में कि आप क्या कर रहे हो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इतना अश्योरिटी आप ले लो, ठीक है। बिकॉज अब ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस कैसा 2 साल का हो गया, तो जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस आई कैन टेल यू वेदर यू आर अटेंटिव और नॉट। सो व्हेन आई टेक नेम्स आई डू पर्पसली सो दैट यू फील कि हाँ नेक्स्ट टाइम मेरा भी हो सकता है, सो आई हैव टू बी अटेंटिव, ठीक है। सो प्लीज बी अटेंटिव, अदरवाइज ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। मैंने आपको गारंटी भी दिया है, अगर ध्यान दोगे तो मेरी गारंटी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, ध्यान नहीं दोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। किसी ने आपको बोला कि चल वापस रिपीट कर, आप कुछ भी नहीं बता पाओगे, नथिंग एट ऑल, ठीक है। चलो, सो ब्लू वाले कार्बन का कंफर्मेशन कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, जो हाइड्रोजन जहां था वहीं रहेगा। बट हमने रेड वाले कार्बन को रुद्राक्ष ने रोटेट कर दिया, रेड वाले कार्बन को रोटेट कर दिया। तो अगर जरा सा रोटेट किया होता तो ऐसा कुछ दिखता स्टूडेंट्स। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको एंगल, ऐसा अपन को रोटेट करना है, दिख रहा है, ऐसा हमको रोटेट करना है, ठीक है। सपोज रुद्राक्ष ने से फॉर एग्जांपल 10-20 डिग्री से रोटेट किया, 10 या 20 डिग्री से रोटेट किया, तो हम यहाँ पे कहीं पे पहुंचे होंगे। ये देखो स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड दिस? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये वाला Yes, एच sir. यहाँ है, ये वाला एच यहाँ है, तो हमने जरा सा रोटेट किया, हमने जरा सा रोटेट किया। रुद्राक्ष बोला सर और भी रोटेट कर सकता हूँ, एक काम करूँ क्या, पूरा उल्टा कर दूं क्या? मैंने बोला कि ठीक है पूरा उल्टा कर दे, चल। सो रुद्राक्ष कहाँ लेकर गया इसको, चेक करो स्टूडेंट्स। ये देखो, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ द शेप ओवर हियर। सो यहाँ पे हाइड्रोजन का शेप ऐसे आ रहा था, वाई शेप, एंड ब्लू वाले हाइड्रोजन का भी शेप यहाँ पे वाई आ रहा था। डू यू अग्री स्टूडेंट्स? अग्री कर रहे हो? ये Yes, sir. वाई शेप दिख रहा है सबको? कंफर्म दिख Yes, रहा है? sir. Yes, sir. शाबाश। नाउ लेट अस लुक कि रुद्राक्ष ने कितना रोटेट किया रेड वाले कार्बन को। इस स्ट्रक्चर में भी ब्लू वाले कार्बन हाइड्रोजन का तो मुझे वाई शेप नजर आ रहा है, बट सरप्राइजिंगली
और आई शुड से इतना ज्यादा रोटेशन हो गया कि ये देखो रेड वाले कार्बन का क्या शेप हो गया, उल्टा वाई, उल्टा वाई बन गया। देखो आप सबके सब, प्लीज टेल Yes, मी sir. यस, प्लीज टेल मी यस ओनली इफ यू Yes, हैव sir. एक्चुअली अंडरस्टूड। अगर आपको Yes, समझा है sir. तो ही यस बोलना, Yes, ठीक sir. है? सर हाँ पूछ 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 मुझे। सर हम लोग ने पहले जो किया था ना, हम लोग ने एच एक लाइक परपेंडिकुलर जैसे बनाया था, एक ऐसा टी करके हमने बनाया था, और ये हम वाई करके बना रहे सर। तो वो कार्बन तो तीन ही है ना, तो हम लोग उसको ऐसा अलग अलग फॉर्म्स क्यों दे रहे हैं लेटर्स के इसमें? समझ में आया, समझ में आया मुझे। सो अभी कैसा है कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पार्थ। हम खाली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, प्लीज रिमेंबर द वर्ड व्हिच आई एम यूजिंग, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन पॉसिबल है, ये मैं तुझे बताना चाहता हूँ। रोटेशन पॉसिबल है, समझा? जैसे कि मैंने हाथ ऐसे रखा पार्थ, ये मेरा हाथ है ऐसे, ठीक है? तू बोलेगा कि सर कोई और कंफर्मेशन दिखाओ, तो मैं ऐसे करूंगा। कोई और कंफर्मेशन दिखाओ, एनी अदर कंफर्मेशन, एनी अदर कंफर्मेशन, एनी अदर कंफर्मेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सो आई एम शोइंग यू डिफरेंट डिफरेंट कंफर्मेशंस। सो यही मैं ट्राई कर रहा हूँ इथेन के साथ भी, समझा पार्थ? Yes, सेम sir. थिंग आई एम ट्राइंग विद इथेन आल्सो। सो दैट इज व्हाई यू सी कि पहले सारा हाइड्रोजन ऐसे था, बाद में ऐसे हो गया, तो ऐसे 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 अपन ऐसे रोटेट करते जा रहे हैं उसको। तो इसी कार्बन को तू घुमा रहा है, बट अगर कार्बन को मैं घुमा के ऐसे लिख दूं तो पार्थ को समझेगा क्या कि मैंने क्या किया? ये देख, ये समझ रहा है मैंने क्या किया है? तो उतना ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं कार्बन को वैसे ही लिख रहा हूँ, बट मैंने हाइड्रोजन को घुमा दिया सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया। एंड बिकॉज रोटेट कर, देख वर्ड देख, रोटेट करने के बावजूद कोई चेंज नहीं हुआ, रोटेट करने के बावजूद कोई चेंज नहीं हुआ। सो कैन आई से कि दीज आर रोटेशनल आइसोमर्स। Yes, sir. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कुछ और थे, रोटेशनल आइसोमर्स कुछ और हैं। एंड नाउ रोटेशनल आइसोमर्स आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड नहीं है रोटेशनल आइसोमर्स, आपको मैं एक वर्ड तक लेकर आ रहा हूँ स्लोली स्लोली। सो आपको अचानक से कोई वर्ड ना आ जा रही, ये कौन सा वर्ड है, तो मैं आपको ग्रेजुअली उस वर्ड तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? सो माय पॉइंट नंबर 1, I can rotate carbon across carbon carbon single bond. That is point number 1. Do you all agree with me? I can rotate carbon across carbon carbon single bond. एंड रिमेंबर आपको एक ही कार्बन रोटेट करना है, दोनों रोटेट करो तो कुछ फायदा नहीं, वो स्ट्रक्चर वही वही मिलता रहे। सो रुद्राक्ष ने किसी एक कार्बन को रोटेट किया, रेड वाले को ही जरूरी नहीं, आप ग्रीन वाले को भी रोटेट कर सकते हो, मैंने रेड वाले को रोटेट किया। कार्बन, दैट इज पॉइंट नंबर 1, आई कैन रोटेट कार्बन अक्रॉस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली। Point number 2, the two structures which I get after rotations, two extreme structures, दो एक्सट्रीम, देखो एक सीधा है एक उल्टा वाई, सीधा वाई उल्टा वाई। डोंट यू थिंक मुझे ऐसा भी स्ट्रक्चर मिल सकता था स्टूडेंट्स? ये सीधा वाई है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में ऐसा भी तो ले सकता था, ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा वाई, देन ये देखो, देन थोड़ा सा और टेढ़ा वाई, ये ऐसे ऐसे, ये भी तो मिल सकता था, है ना? आप Yes, बोलोगे sir. सर ये भी, मैं बोलूंगा हाँ डेफिनेटली ये भी मिल सकता है, बट आई एम जस्ट कंसर्न विद द एक्सट्रीम स्ट्रक्चर्स, एक सीधा वाई एक उल्टा वाई। बीच में ये सीधा वाई उल्टा वाई के बीच में आई विल गेट इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स, आई कैन गेट इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स, एंड ऑल दो स्ट्रक्चर्स डू एग्जिस्ट, सारे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बात समझ लो। सर एक डाउट है, हाँ अर्नव, रोटेशन से बॉन्ड में डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं? शाबाश शाबाश, रोटेशन से बॉन्ड में डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अर्नव, मेरा एक क्वेश्चन तेरे लिए ये है, मेरा एक क्वेश्चन तेरे लिए ये है अर्नव, ये देख, कैन आई से कि ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में बातें होती होंगी, और क्या हालचाल है हाइड्रोजन, वो बोलेगा हाँ और क्या हालचाल है तेरा, है ना? अब मुझे बता अर्नव, अगर मैं इनको रोटेट कर दूं, अगर मैं रोटेट कर दूं तो यहाँ पे चेक कर, अब डोंट यू थिंक नाउ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कितने दूर चले गए, देख बेचारे कितने दूर चले गए, कितने दूर चले गए दोनों जन। अब दोनों बाजू बाजू में बैठे हैं क्या, दोनों के बीच में बातें हो पा रही हैं क्या, कम हो रही हैं या ज्यादा हो रही हैं? कम हो रही है। कम हो रही हैं। सो नाउ कैन आई से बॉन्ड बॉन्ड इंटरैक्शन, बॉन्ड बॉन्ड इंटरैक्शन will reduce, can I say that bond bond interaction will reduce Yes, because sir. of these
रोटेशंस। समझ में आया? समझ गया। समझ में आया? तो अगर but sir, पार्थ ने एक मिनट रुद्राक्ष, एक मिनट। सो अर्णव ने क्या बोला कि बॉन्ड में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। आई सेड आई एग्री विथ यू, बट इंटरैक्शंस, जो एक मॉलिक्यूल में इंटरैक्शंस है वो जरूर चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन लेंथ। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल जनरली ये वाला देता हूं। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप लोग का टेस्ट चालू है, एंड ये ऑनलाइन वाला टेस्ट नहीं, आप क्लास में आके टेस्ट दे रहे हो मुझे, ठीक है, क्लास में आके टेस्ट दे रहे हो, और मैंने फर्स्ट बेंच पे बिठा दिया जय को, पार्थ को, आर्य को, इन तीनों को मैंने फर्स्ट बेंच पे बिठा दिया साथ। एग्जाम चालू, ठीक है, बोर्ड्स का 10th का सीईटी चालू है तुम्हारा, एक्चुअल सीईटी। सेंटर पे हमने इन तीनों को एक साथ बिठा दिया, पार्थ, अर्णव एंड जय को एक ही बेंच पे। पीछे वाले बेंच पे बैठा है तनीश, रुद्राक्ष एंड भाविका, ये लोग तीनों बैठे हैं। थर्ड वाले बेंच पे बैठी है निशा, जिया, मीत। देखो लाइन से 3 बेंच, तीनों बेंच पे 3-3 जन। और अगर जो सुपरवाइजर है, अगर वो सपोज 15 मिनट के लिए बाहर जाता है, या 15 मिनट जान दो, 10 मिनट के लिए भी बाहर जाए, तो ये 9 के 9 जन का क्या हाल होगा बताओ? आपको लगता है शांति से बैठ के एग्जाम देंगे? इमीडिएटली चालू हो जाएगा ना, पार्थ बोलेगा फर्स्ट वाला क्या, फर्स्ट वाला क्या, वो पूछे से पूछेगा सेकंड वाले का क्या है, भाविका बोलेगी फोर्थ वाले का ये है, निशा बोलेगी फिफ्थ वाले का क्या है, मीत बोलेगा 7th वाले का ये है। सब चालू हो जाएंगे ना इंटरेक्शन करना। Why? Because you people are close together. Now take case study 2. सेकेंड केस में लेता हूं। एक बेंच पे एक ही बच्चा, वो भी क्रिस क्रॉस। अगर पार्थ बैठा है राइट साइड फर्स्ट बेंच पे, तो फर्स्ट बेंच पे और कोई नहीं बैठेगा। सेकंड बेंच पे आर्या बैठा है, वो भी डायगनली ऑपोजिट, या सेकंड बेंच पे भी नहीं, थर्ड बेंच पे बैठा है, सेकंड बेंच बीच में खाली। फिर फोर्थ बेंच पे कोई नहीं, फिफ्थ बेंच पे एक बच्चा, सिक्स बेंच पे कोई नहीं, 7th बेंच पे एक बच्चा, वो भी दूर दूर डायगनली ऑपोजिट कर दिया मैंने। अब कितनी बातें होंगी बताओ? उतनी ही बातें हो सकती हैं क्या? आपको बहुत ज्यादा मुंडी यहाँ वहां करना पड़ेगा, और अब चांसेस है कि मैं अगर दूर खड़ा हूं तो भी मैं आपको देख लूंगा। पहले वाले केस में मैं दूर खड़ा हूं फिर भी आपको शायद मुझे नजर ना, बिकॉज आपको मुंडी थोड़ी लानी, आपको तो बाजू में बैठा है, खाली आवाज आपको नहीं आंसर दे देगा। सो आई से कि इंटरैक्शंस विल रिड्यूस if bond is rotated, if hydrogens are taken further apart from each other, and that is what happens over here, students. So if I ask you, इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? चुपचाप बैठा है, कुछ बातें नहीं करेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? राइट साइड वाला या Right लेफ्ट? side. राइट साइड वाला। इज दैट अंडरस्टूड? राइट साइड वाला कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल। इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बताओ मुझे जल्दी जल्दी। सर पर वो जो 2 हाइड्रोजन है जो अभी नई प्लेस उन लोग ने ले लिया, उनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा ना, तो फिर हाँ जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। वो तो सेम पहले भी था ना, तो मैं उसका खाली देखूंगा जो चेंज हो रहा है। अगर वो है तो वो तो पहले भी था, वो तो अभी भी है, बट चेंज कौन सा हुआ मैं उस पर नजर डालूंगा। समझ में आ गया बात? एक काम करो, ये देखो स्टूडेंट्स, इफ यू कैन डू दिस, आप दोनों दोनों हाथ के बीच में पेन रखो अपना, और ऐसे करो, ये ऐसे उंगली जैसे भी 2 पेन रखो। हाँ शाबाश रुद्राक्ष, वेल डन। ठीक है, और दिखाओ, मुझे दिखाओ, अगर आपने रखा है पेन तो मुझे दिखाओ। तो जल्दी जल्दी तनीषा जल्दी जल्दी पेन रख ऐसे। भाविका एक ही पेन, मीत एक ही पेन लेना, सिर्फ एक पेन 2 हाथ के बीच में। ठीक है, रेडी? शाबाश, वेल डन। अब जहां पे आपका पेन टच कर रहा है ना आपके हाथ को, दैट इज योर कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, जहां पे पेन आपका टच कर रहा है, दिस इज योर 1 कार्बन एंड दिस शुड बी योर 2nd कार्बन, करेक्ट? कैन यू आइडेंटिफाई द कार्बन्स? कार्बन आइडेंटिफाई कर रहे हो? जहां पे पेन आपके हाथ को टच कर रहा है, दैट इज योर कार्बन। तो एक तो ये कंफर्मेशन, ठीक है। अब आप क्या करो, जरा सा कोई भी एक हैंड रोटेट करो, जरा सा रोटेट, विदाउट पुटिंग डाउन द पेन। एक हाथ कोई भी ऐसे रोटेट करो, जरा सा ही करना है, जरा सा ही करना है। वेरी गुड, वेल डन जय मेहता, बहुत सही। और थोड़ा रोटेट करो। नाउ करते करते मैं ऑपोजिट कर दिया, देखो ऐसे हाथ कर दिया, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, एक हाथ ऊपर की तरफ एक हाथ नीचे की तरफ। शाबाश, वेल डन रुद्राक्ष, जय मेहता, बहुत अच्छे से किया। वेल डन रौनक, वेरी गुड मीत सोनी, चिराग पाटिल, शाबाश शाबाश अर्नव, तनीश राणे, बेस्ट किया, तनीश राणे ने बेस्ट किया। देखो प्रॉपरली उसने एकदम ऑपोजिट ले लिया। मीत सोनी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आर्य
तो ये दो कंफर्मेशन है स्टूडेंट्स, ये दो एक्सट्रीम कंफर्मेशन, दीज टू आर एक्सट्रीम कंफर्मेशंस। बट कैन आई से व्हाइल भाविका वाज रोटेटिंग हर हैंड, तो ये भी तो एक कंफर्मेशन था, ये भी तो एक कंफर्मेशन था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, बट एक्सट्रीम एक था। सो दो एक्सट्रीम के बीच में कितने कंफर्मेशंस आप मुझे बताओ, दो एक्सट्रीम के बीच में कितने? इनफाइनाइट। हाँ, अब जब उसके हाथ ऐसे थे, जब हाथ ऐसे हैं आपके, मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे हैं सामने सामने, तो इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑपोजिट चले जाते हैं तो इंटरेक्शन के चांसेस कम होते हैं। सो देयरफॉर दिस इज हाईली स्टेबल, दिस इज लीस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ इंटरेक्शंस पॉसिबिलिटी। मुझे फिलहाल आपको इतना ही समझाना था। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. रुद्राक्ष, डाउट? एनी डाउट? यस स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क मी योर डाउट्स। एनी डाउट्स? सो दीज टू, हाँ, ओके। नाउ दीज टू कंफर्मेशंस, ये जो आपने ऐसा एक बनाया हाथ आपका और जो आपने ऐसा बनाया लास्ट वाला, दोनों एक्सट्रीम वाले, इन दोनों कंफर्मेशंस को बोलते हैं दीज आर रोटामर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स नहीं, रोटामर्स। नया वर्ड समझा? रोटामर्स क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज आई फॉर्म्ड देम बिकॉज ऑफ रोटेशन अक्रॉस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। Try to understand this very nicely, students. Now, example number 2. Example number 2 ले लो, चलो। दो पेन ले लो, हाँ, दो पेन ले लो, और दोनों पेन यहाँ रखने के बजाय फिंगर्स के बीच में रखो, दोनों पेन एक के ऊपर एक। हाँ, मीत एग्जैक्टली करेक्ट है, मीत करेक्ट है, करेक्ट है। ये देखो, मीत सोनी का चेक कर सकते हो आप लोग, कैमरा चेक करो मीत ने कैसे पकड़ा है। थोड़ा और कैमरा के नजदीक लेकर आ हाथ मीत। हाँ, बस 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 बस, ये देखो ऐसे कुछ पकड़ लो। दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स। सबके सब कैमरा के नजदीक दिखाओ हाथ अपने। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपको इमेजिन भी करना है कि ऐसे सपोज बॉन्ड है। कार्डबोर्ड आपने लिया, दो कार्डबोर्ड लिया आपने, दोनों कार्डबोर्ड में दो ऐसे पेन या दो रॉड डाल दिए आपने, दो रॉड्स डाल दिए आपने। दो कार्डबोर्ड्स लिए, दोनों कार्डबोर्ड्स में दो दो होल बनाया, दोनों में एक कार्डबोर्ड में दो होल, दूसरे कार्डबोर्ड में दो होल, एंड दोनों होल में अलग अलग रॉड डाल दिया। नाउ कैन यू रोटेट दीज टू? हाथ रोटेट करने का ट्राई करो। रोटेट हो पा रहा है क्या पूरा? कोई टैलेंटेड है जो रोटेट कर पा रहा है? रोटेट होना पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू इमेजिन ऑल्सो। आप इसको रोटेट कर दोगे, बट आप कार्डबोर्ड को इमेजिन करो। कार्डबोर्ड में अगर आपने ऐसा रखा होता तो आप कार्डबोर्ड रोटेट कर पाते क्या? नहीं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड cannot be rotated. So what is your conclusion? Rotational isomers can be seen in alkane, alkene, alkyne. True or false? False. Next. Rotational isomers can be seen only in alkane. True or false? True. Shabash. Rotational isomers cannot be seen in alkene. True. Rotational isomers can be seen in alkyne. False. Rotational isomers can only be seen in alkane. True. क्लियर है ये बात? क्लियर है? रोटेशनल आइसोमर्स को ही दूसरा नाम दिया गया है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्लियर है ये बात? बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। हाँ, अब आपको तो बात समझ में आ गया। अब देखते हैं कि साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको साइंटिस्ट की बातें भी इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं कार्बन को एक डॉट से इंडिकेट करूंगा। आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए जो मैंने स्क्रीन पे बनाया है? जो स्क्रीन पे बनाया है वो समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके स्टूडेंट्स, ये येलो वाला एरो समझ रहा है मैं क्या इंडिकेट करना चाहता था? येलो वाले एरो से जो मैंने ऐसे घुमाया है उससे मैं क्या इंडिकेट करना चाहता हूँ कि मैंने रोटेशन करना चाहा। ठीक है, इधर यू ड्रॉ इट ओवर हियर और देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इफ यू ड्रॉ इट ओवर हियर। ये देखो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ भी ड्रॉ किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ऐसे भी अगर आपने ड्रॉ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दैट आई एम इंडिकेटिंग कि कार्बन को रोटेट कर रहा हूँ। आप आगे वाले कार्बन को भी रोटेट कर सकते थे। कैसे? ये देखो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। कोई बोलता है सर आगे वाले को रोटेट करूं, डेफिनेटली यू कैन रोटेट आगे वाले को। तो पीछे वाले को पहले सेम कर दो, पीछे वाले को वाई ही बना दो वापस से। वाई दिख रहा है मुझे? यस दिख रहा है। अब मैं आगे वाले को रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे वाला वाई दिखता था पहले, अब वाई नहीं दिखेगा, अब इन्वर्टेड वाई दिखना चाहिए। ये समझ में आ गया बात? और आपको आप क्या करोगे, येलो एरो यहाँ पे बनाओगे, ऐसे रोटेशन कर रहा हूं मैं इस वाले कार्बन का। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स?
एनीवन यू कैन ड्रॉ, बट मेक श्योर कि आप खाली किसी एक को रोटेट कर रहे हो। आपने हाथ भी ऐसे किया ना, अगर आप दोनों हाथ ऐसे करते तो कोई चेंज, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होता। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस ओवर हियर स्टूडेंट्स। तो मैं पीछे वाले को रोटेट करके ही आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। तो ये एच में वापस से ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, और ये एच को वापस से। अब मैं आ रहा हूँ प्रॉपर थियरी पे। अब आपके टेक्स्ट बुक क्या लैंग्वेज में बातें करूंगा मैं, आपका टेक्स्ट बुक क्या बोलता है उस लैंग्वेज में बातें करूंगा। ये दो कन्फर्मेशंस है मेरे पास। इथेन की पढ़ाई हम कर रहे हैं, इथेन स्टूडेंट्स, इथेन के अलावा कोई और अल्केन आपको नहीं पढ़ना है। ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए यू डोंट हैव टू स्टडी एनी अदर अल्केन, इट इज पॉसिबल इन ऑल द अल्केन्स बाय द वे। सारे अल्केन्स में पॉसिबल है, अल्केन्स में पॉसिबल है, बट आपके सिलेबस में आप सिर्फ इथेन के बारे में पढ़ाई करोगे। एंड यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू योर बोर्ड ऑल्सो कि वो बेचारे इथेन का ही पढ़ाई आपसे करवा रहे हैं। वरना सोचो आप घर पे बैठ के क्या क्या शेप बनाते हैं, ऐसे प्रोपेन, हेप्टेन, हेक्सेन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सबका कंफर्मेशन आज मज बनाते रहते हैं, और कैसे आप सोचते हैं किसको कहाँ घुमाने वाले हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये देखो स्टूडेंट्स, इफ आई एक्सप्रेस ब्लू कार्बन इन दिस पैटर्न, डू यू ऑल अग्री विथ मी? ये देखो, दिस इज माय ब्लू कार्बन, सपोज दिस इज माय रेड कार्बन, ब्लू कार्बन, रेड कार्बन। वापस ड्रॉ करता हूं, ये देखो, फिर से ड्रॉ करता हूं, रेड कार्बन एंड ब्लू कार्बन। ये क्लियर है? ध्यान देना, अगर एक बात बताओ मुझे, अगर स्टेज पे दो डांसर्स डांस कर रहे हैं, ठीक है, सबके सब कैमरा ऑन करो, फिर से शर्मा गए, कैमरा ऑन कर लो। सपोज डांसर डांस होता है ना जनरली कि पर स्टेज के एग्जैक्टली सामने बैठे हैं और डांसर, सपोज देयर आर 4-5 डांसर्स एंड सब एक से एक के पीछे एक खड़े हैं, सेम हाइट वाले, एक के पीछे एक खड़े हैं, एग्जैक्टली एक के पीछे एक खड़े हैं। आपने देखा है बहुत बार ऐसे डांसेस में वो लोग ऐसे कन्फर्मेशंस करते हैं कि लाइन से जब खड़े हैं तो हमको खाली आगे वाले दिखता है, पीछे वाले दिखते ही नहीं, एंड खाली सब ऐसे हाथ बाहर निकालते हैं, पीछे वाले हाथ बाहर निकालते हैं, तो हमको पीछे वाला दिख रहा है क्या? नहीं, बस उसके हाथ दिखते हैं अपने को। तो जो सामने बैठा है उसको तो एग्जैक्टली ये पिक्चर दिख रहा है, बट व्हाट इफ कोई साइड में बैठा है स्टेज के एग्जैक्टली कॉर्नर में, तो उसको तो सब दिखता होगा ना, उसको पीछे वाले भी दिखते होंगे। डू यू ऑल एग्री विथ मी? उसको तो पीछे वाले भी, बिकॉज साइड से व्यू है उसका साइड व्यू है, ठीक है। तो ये मैं साइड व्यू ले रहा हूं, तब जाके मुझे ये बॉन्ड नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। डू यू ऑल एग्री? ये ग्रीन वाला बॉन्ड क्यों दिख रहा है? बिकॉज मैं साइड से देख रहा हूँ डांसर्स को, मैं दोनों कार्बन्स को साइड से देख रहा हूँ। तो आप चेक करो, प्लीज चेक क्या होने वाला है स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये ग्रीन बॉन्ड बना देता हूँ दोनों के बीच में, ग्रीन बॉन्ड, ये रहा ग्रीन बॉन्ड। ये सेम स्ट्रक्चर खाली अलग तरीके से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ और कुछ नहीं, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में है वैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। रेड वाले कार्बन के 3 बॉन्ड्स बना दो, वाई शेप आपको प्रॉपर दिखेगा। ये देखो वाई बन गया, ब्लू वाले को भी वाई बना देता हूँ, वाई बन गया। प्लीज चेक, प्लीज चेक, आई हैव नॉट पुट हाइड्रोजन्स and I'll not write carbon also. I'm expressing carbon with a dot. I'm expressing carbon with a dot. ठीक है स्टूडेंट्स, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। थोड़ी देर बाद में और एक तरीका बताऊंगा। ये देखो, ये ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको अब रोटेट करना है मुझे, है ना। तो ये ऐसा ऊपर ऐसे और ऐसे हो गया, एंड ब्लू वाला एज इट इज है, ब्लू वाला एज इट इज है। बताओ, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये और अच्छे से बना दो इसको, बताओ। Now I'll put hydrogens also. H H H H H H and red hydrogens डाल देते हैं, H H H, यहाँ पे उल्टा H H and H. These are 2 confirmations. Please check students. इन दोनों के बीच में ऐसे 3 डैश डाल देता हूँ, इक्विवेलेंट है, बस दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। देखो आप चेक करो, आपको समझा डिफरेंस? आपको समझ रहा है डिफरेंस? रेज योर हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। Raise your hand, students, if you have if you have understood. If you have understood, raise your hand. Raise your hand. Shabash. Very good. Vidhi, what about you? Yes, Savant. Raise your hand, students. अगर समझ में आया तो हाथ ऊपर करो। Okay. What about others? कैमरा ऑफ करने वाले बाकी लोग, आपको समझ में आया?
ओके, क्या बात है, वेरी गुड। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है। इस फॉर्म का क्या नाम है? इस फॉर्म का नाम है एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या नाम है इसका? एक्लिप्स्ड फॉर्म, करेक्ट है, समझ में आया? एक्लिप्स्ड फॉर्म मतलब क्या? एक के पीछे एक बॉन्ड है, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? एक के पीछे एक, ये देखो, ये साइड व्यू में आपको दोनों दिख रहे हैं, सामने से आपको सामने दिखेगा, बस दिख रहा है। दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म, प्रॉपर्ली ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। एंड ये वाला जो फॉर्म है इसको अपन बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? स्टैगर्ड फॉर्म। सोचो, बुक में अपन कितने आसानी से इथेन बना देते हैं, बट इथेन एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करता है? इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो आपकी बुक में बनाओ ये दोनों स्ट्रक्चर्स, आपके बुक में बना लो, ये जल्दी से बना लो आपके बुक में, जल्दी जल्दी। ऊपर आपको लिखना है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशंस इन एल्केन, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन, ऐसा भी टाइटल दे सकते हो, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन एंड ड्रॉ दीज टू स्ट्रक्चर्स। इनफैक्ट 4, 4 के चारों ड्रॉ कर सकते हो, बट ध्यान देना कि ये जो है यही स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये आपको समझ में आया ना? ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, खाली मेरा डिफरेंट तरीका आपको समझाने के लिए बस। चलो फटाफट ड्रॉ करो और फॉर्म का नाम लिख दो, एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। All right, let us begin.
आगे चलते हैं। सो ये जो कंफर्मेशन स्टूडेंट्स आपने लिखा है, दोनों कंफर्मेशन जो बनाया आपने, नेमिंग भी कर दिया ना, एक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म नेमिंग कर दिया सबने, एक्लिप्स सर फॉर्म एंड जो Yes, बीच स्टैगर्ड। sir. में 3 लाइंस है वो सिमिलैरिटी इंडिकेट करती है ना? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, बोथ आर सिमिलर, ओनली थिंग इज कंफर्मेशंस दोनों के अलग अलग हैं। सो ये दोनों कंफर्मेशन किसने दिया, आप इन दोनों के ऊपर जाके लिख सकते हो सोहर्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है ये, सोहर्स फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख दो मैं टाइटल यहाँ पे, कंफर्मेशन तो आपने लिखा ही है, उसके नीचे जाके ये नाम लिख दो, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? तो सोहर्स नाम के साइंटिस्ट ने हमको ये फॉर्मूला दिया कि दिस इज हाउ इथेन वुड लुक लाइक। चलो सबके सब नाम लिख लो फटाफट, ये वाला सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हियर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? Yes, sir. वेरी गुड। सोहम तेरा क्या हाल है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो स्टूडेंट्स, एक और साइंटिस्ट से मिल लेते हैं, दूसरा साइंटिस्ट। आप लोग भी मुझसे मिल लो, चलो कैमरा ऑन कर लो सबके सब, एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरा। चिराग, चिराग बहुत कैमरा ऑफ करता है यार, तू लेक्चर में रहता है कि नहीं? चिराग ऑडियो ऑन कर। चिराग पाटिल, स्विच ऑन योर ऑडियो। नो नो, यू आर नॉट ऑडिबल, हेडफोन निकाल के बात कर। हेडफोन मोबाइल से निकाल दिया ना अभी, कान से भी निकाल दिया। हाँ बता। हाँ, स्विच ऑन योर ऑडियो नाउ। कैमरा क्यों ऑफ करता है तू? अभी ऑन किया ना मेरे बोलने पे। ऑफ क्यों किया था? तुम लोग बीच बीच में कहीं जाते हो क्या? उठ के कहीं चले जाते हो क्या? चलो अभी ठीक है, थोड़ा टाइम पास कर, थोड़ा राउंड मार के आते हैं। चलो ध्यान दो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम चिराग, चल ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल गो टू अनदर साइंटिस्ट। एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सेम बताया, एंड टेंशन आपको लेना नहीं है। टेंशन क्यों नहीं लेना है कि उसका भी सिमिलर फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, सिमिलर है, कुछ भी जरा भी ज्यादा चेंज नहीं। ये देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन क्यों पूछा कि तू बता कैसे दिखता है इथेन? न्यूमैन को हमने बोला न्यूमैन तू बता इथेन कैसे दिखता है, तो न्यूमैन ने बोला मेरे हिसाब से इथेन ऐसा कुछ दिखेगा। ये देखो स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस ओवर हियर। ये रहा अपना पीछे वाला कार्बन रेड, और ये रहा अपना ब्लू वाला कार्बन, जिसको उसने आगे वाला कार्बन डॉट से दिखाया। समझ में आया? आगे वाला कार्बन ब्लू कलर का था, याद है? तो न्यूमैन ने बोला आई विल कंसिडर इट एज अ डॉट, एंड पीछे वाले कार्बन को उसने कंसिडर किया एज अ सर्कल। अगेन यहाँ पे बना देता हूँ, दो कंफर्मेशन अपने को बनाना है ना। ये देखो, ये पीछे वाला कार्बन और ये आगे वाला कार्बन। क्लियर है बात? क्लियर है बात स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है? ये हमने खाली दो कार्बन अब तक बनाया बस। सबको क्लियर है? प्लीज टेल मी, ऑडियो पे बोलो मुझे। यस सर। Yes, sir. शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, नाउ आप मुझे हेल्प करोगे, ठीक है? प्लीज हेल्प मी स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन कौन से शेप में बनाऊं? ब्लू वाले कार्बन का हाइड्रोजन बताओ मुझे। वाई शेप दे दें इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। डू यू ऑल अग्री विथ मी? चेक करो, चेक करो, वाई शेप में है, वाई शेप में है ये। Yes, sir. हाँ, पीछे वाला रेड वाला कार्बन भी पहले वाई शेप में ही था, रेड वाले कार्बन के हाइड्रोजन भी वाई शेप में थे, है ना? चलो बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। वाई शेप में एग्जैक्टली इसके पीछे, बट एग्जैक्टली पीछे लिखूंगा तो दिखेगा भी नहीं आपको, सो मैं थोड़ा सा बाजू में लिख रहा हूँ। प्लीज सी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। ये देखो, ये रेड वाले कार्बन के हाइड्रोजन है, चेक करो। कुछ बात समझ में आई? ट्राई टू इमेजिन, एक के पीछे एक खड़े हैं कार्बन।
एंड हाइड्रोजन्स प्रॉपरली ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे पहले केस में आपने बनाया था। ओनली थिंग है आप साइड से देख रहे थे तो आपको दोनों कार्बन दिखते थे, अब आप सामने से देख रहे हो तो अब खाली हाइड्रोजन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो भी एग्जैक्टली पीछे हैं तो आपको वो भी ना दिखे शायद। एंड ओवर हियर आई विल राइट अगेन सेम तरीका, सेम नेमिंग. This is known as eclipsed form where bonds are overlapping. I'll draw 3 bonds over here just to indicate कि both are equivalent. Now ब्लू वाले कार्बन को मैं जरा भी रोटेट नहीं करूंगा तो उसके हाइड्रोजन सेम बना दो, ये देखो इसके हाइड्रोजन मैंने सेम बना दी। एंड देन आई विल शो माय येलो एरो एंड आई विल इंडिकेट कि मैं अब इसको रोटेट करने वाला हूँ, किसको, रेड वाले कार्बन को रोटेट करने वाला हूँ, रेड वाले कार्बन को रोटेट करने वाला हूँ। सो एग्जैक्टली वाई का ऑपोजिट बनाना है। पहले चेक करो मैंने ब्लू वाले हाइड्रोजन्स मैंने वाई बनाए हैं क्या सेकंड स्ट्रक्चर में, ये वाले में देखो, चेक करो स्टूडेंट्स, ये वाले में प्रॉपर वाई बना है क्या, चेक करो। भाविका टेल मी, प्रॉपर वाई बना है Yes, हाइड्रोजन्स Yes, का? sir. वेरी गुड। रौनक, वाई बना है प्रॉपर ब्लू Yes, वाले sir. हाइड्रोजन्स? शाबाश। लेट अस गो टू रेड हाइड्रोजन्स। सो फर्स्ट हाइड्रोजन कहाँ बनाऊं मैं, ये देखो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ इनके बीच में आ गया और एक इन दोनों के बीच में आ गया, एग्जैक्टली सबके बीच बीच में डाल दो, ठीक है। ये देखो स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये ग्रीन वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया है, देखो ग्रीन वाला जो अंडरलाइन मैंने किया वो एग्जैक्टली ऊपर चला गया, नीचे से एग्जैक्टली ऊपर 180 डिग्री ऐसे आपने रोटेट किया, आपने रोटेट किया बाय 180 डिग्री। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, इज दिस yes, क्लियर? sir. सो दिस इज नोन एज विच फॉर्म, बताओ आप मुझे क्या नाम है इसका? Staggered. Staggered form. स्टैगर्ड फॉर्म, शाबाश। सो अगेन ये इथेन ही है, इथेन को ही अपन ने एक्सप्रेस किया। सो न्यूमैन बोलता है ऐसे अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं इथेन को। ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क यू, कैन आई से कि यहाँ से एक्लिप्स से स्टैगर्ड पहुंचने के बीच में मेरे पास कितने स्ट्रक्चर्स आए होंगे? इनफाइनाइट, करेक्ट स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स, Infinite. यू ऑल एग्री? रोटेट, पहले मैंने रोटेट किया 10 डिग्री से, देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे करते करते 180 चला गया, 180 चला गया, है ना। इनके बीच में भी स्ट्रक्चर्स के कुछ नाम है, मैं उन नाम पे भी आता हूँ। जैसे 180 डिग्री रोटेट होने के बाद ये क्या बोलते हैं, इसको अपन स्टैगर्ड फॉर्म। वैसे बीच में अगर रोटेट होता है इसको क्या बोलते हैं, वो भी नाम बताता हूँ, तो मैं उसका भी नाम बताता हूँ, ठीक है। आप ऐसे एरो भी ड्रॉ कर लो तो आपको समझ में आएगा। इन बिटवीन वी हैव इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आई लाइट ऑल्सो infinite conformations in between, infinite conformations in between। ये वर्ड समझ में आया सबको? ये मैंने क्यों लिखा, समझ में आया? नहीं समझा तो प्लीज पूछ लो। infinite conformations in between these two structures, yes students? हाँ, मुझे डाउट भी आ रहे हैं चैट बॉक्स में, तो मैं वो डाउट्स भी देख लेता हूँ क्या क्या आपने पूछा है। सर 10 में सर्कल्स बनाकर उस पर दोनों सर्कल पर डॉट डाल के उसको कंबाइन करते शायद, तो इलेक्ट्रॉन डॉट करके कुछ, यस डेफिनेटली करेक्ट, डॉट फॉर्मूला, बट दैट इज टू इंडिकेट इलेक्ट्रॉन्स, समझा रौनक, है ना। डॉट फॉर्मूला अपन क्यों यूज करते थे, इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड्स इंडिकेट करने के लिए, समझ में आया? यहाँ पे तो खाली उनके कंफर्मेशन बता रहा है, 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर में कैसे दिखते हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रौनक? रौनक ने ये भी पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। सो इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है रौनक कि हमको कंफर्म करना है कि इथेन कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड इथेन का कौन सा फॉर्म ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ओके, सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू यू व्हिच फॉर्म इज मोर स्टेबल, रिएक्टिविटी वाइज कौन सा ज्यादा स्टेबल है? Staggered form. स्टैगर्ड फॉर्म, रिलैक्स होके बैठा है। ऐसे भी आप भी रिलैक्स होके ऐसे ही बैठे थे ना, जब मैं आपको बोला था रिलैक्स, तो आप कैसे आराम से बैठे, रिलैक्स, सारे हाथ पैर एक दूसरे से दूर, ऐसे आराम से, है ना। आप ऐसे अलर्ट होके सोते हो क्या, चुपचाप सब हाथ इकट्ठे कर लो सो जाओ, नहीं ऐसा नहीं ना, अपन रिलैक्स होके सोते हैं आराम से। इमेजिन करो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चालू है, आपके पास सामने वेफर है, कोल्ड ड्रिंक है, या कोई इंडिया पाकिस्तान मैच जाने दो यार, कोई अच्छी मूवी चालू, मस्त बहुत अच्छी मूवी चालू है, कॉमेडी, आप कैसे आराम से बैठोगे एकदम चिल्ड आउट होके, दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म, लीस्ट रिएक्टिव, बॉन्ड्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर,
So least bond interaction. Am I understood? So अगर कोई आपको बोले कि इथेन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, आप बोलोगे मे बी मेजॉरिटी ऑफ प्रोपोर्शन से 90% ethane molecules are in staggered form and remaining 10% are in eclipsed form. I'm giving this figure just to make you understand. Out of 100%, 90% ethane would be in staggered form and 10% would be in eclipsed form. कौन नहीं चाहता कि मैं स्टेबल होकर आराम से बैठा रहूं? क्लियर बात? समझ में आया? चलो ये बनाया आपने, बुक में बना लिया, ये बुक में बना लो फटाफट से, बुक में ना बना लो स्टूडेंट्स फटाफट से. Quickly draw this in your book. ये ड्रॉ कर लो बुक में. If already done, please raise your hand. अगर आपने ऑलरेडी बना लिया है, so please raise your hand so that I can move ahead. Yes, students. Done. Okay, शाबाश. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. Now I want to ask you few differentiate between, आपको मुझे पूछना है. So I'll write over here eclipsed form. आप भी अपने बुक में लिख लो eclipsed form and यहाँ पे लिखेंगे हम staggered form. Eclipsed form and staggered form. ठीक है. eclipsed form, staggered form. Just a second. Eclipsed and staggered and I'll write parameters over here. ठीक है. So parameter क्या है? पहला parameter है stability. नहीं, wait. Energy, overall energy of the system. आप सोच के बताओ. एग्जाम्पल ले लो. आपका एग्जाम में जो आप बैठे थे सबके सब, उसका एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. सो जब आपके सबके सब साथ में बैठे हो, पहले 3 बेंच में 9 के 9 जन बैठे हो, तो आपस में आपकी एनर्जी कैसे रहेगी? हाई या लो? हाई. आप बात करते रहो ना, जल्दी तू बता, मुझे तू बता, तू कॉपी करा दे, ये ले तू आंसर ले ले, ये ले तू आंसर ले ले, क्वेश्चन ले ले. सब आपस में काफी बातें करो. करेक्ट है. कैमरा ऑन कर लो. देखो चिराग ने कैमरा ऑन रखा है, बाकी सबने ऑफ कर लिया. वेरी गुड. अभी चिराग ने अगर ऑन रखा था तो हीर ने बोला ठीक है, आई विल टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तूने ऑन रखा है इस बार, तो आई विल ऑफ, डोंट वरी. ठीक है. पासिंग द पार्सल वैसा होता ना, वैसा. सो आपने मैसेज भी चैट बॉक्स में मैसेज कर दिया, हीर प्लीज यू टेक ओवर, आई एम नाउ कीपिंग माय कैमरा ऑन. सो ऑफ ऑन वाला तू गेम खेल अब. मीत यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, यू कंटिन्यू. भाविका यू आल्सो. ये 2-3 जन कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉपर, कैमरा ऑफ कैमरा ऑन, अच्छे से खेल रहे हैं. ओके. अभी एवरी लेक्चर के एंड में आई विल अनाउंस एन अवार्ड आल्सो. एक अवार्ड भी अनाउंस करूंगा. हु वाज द बेस्ट स्विच ऑन स्विच ऑफ प्लेयर ऑफ द लेक्चर. ठीक है. तो उसमें भी आपको जीतने का पूरा मौका है. एंड आई कैन सी कि मीत, सोनी एंड भाविका, इन दोनों के बीच में काफी टफ कंपटीशन होगा, बिकॉज ये दोनों काफी अच्छे से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेते हैं. मतलब यू विल नॉट इवन रियलाइज कि कब भाविका गायब हो गई. अब ऐसे खाली बैठ रहती, जैसे जरा भी नजर हटी स्विच ऑफ. ओके चलो. सो एनर्जी ऑफ सिस्टम किस में हाई रहेगा स्टूडेंट्स? Eclipse. में भर के होमवर्क मिलेगा. करेक्ट है. सो एक्लिप्स्ड में एनर्जी रहेगा हाई, यहाँ पे एनर्जी रहेगा लो. करेक्ट स्टूडेंट्स. देयरफॉर रिएक्टिविटी किस केस में हाई रहेगा स्टूडेंट्स? Staggered. एक्लिप्स्ड में रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा. ठीक है. यहाँ पे हाई रहेगा, यहाँ पे लो रहेगा.
नेक्स्ट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बताओ मुझे। स्टैगर्ड में हाई, वेरी गुड, स्टैगर्ड में हाई रहेगा एंड यहाँ पे होगा लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिएक्टिविटी के बेसिस पे अपन ये वाला भी ले सकते हैं, बॉन्ड बॉन्ड इंटरैक्शन, बॉन्ड बॉन्ड इंटरैक्शन, ठीक है। बॉन्ड बॉन्ड इंटरैक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा, बॉन्ड बॉन्ड इंटरैक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा बताओ। वेरी गुड, यहाँ पे होगा हाई और यहाँ पे होगा लो, समझ में आ गया। यहाँ पे होगा हाई, यहाँ पे होगा लो। चलो नोट डाउन कर लो इसको, प्लीज नोट डाउन। क्लियर है ये? वेरी गुड। Yes, sir. अरे ये दोनों अब तक मुझे दिख रहे हैं, ये मीत और भाविका। क्या हो गया तुमको, बटन खराब है क्या तुम्हारा? वो बटन खराब हो गया कैमरा वाला, एक बार ट्राई करो वापस। पार्थ देखते मुझे हंसना है तो अच्छे से हंस, पार्थ ऐसे हंसी ना, दबा मत, तुझे हंसना है तो अच्छे से हंसी। चलो डन स्टूडेंट्स, should we move ahead? 2 सेकंड से लास्ट वाला। But we have many students जिन्होंने अभी भी कैमरा ऑफ रखा है, तो ये देखो अब कैमरा ऑन होने लगा। अभी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, and for the first time Rudraksh is also trying the game today. Rudraksh is enjoying this game, मतलब everyone has to try this once or once at least. It is very very engaging, मतलब आपका इससे फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन आपका और अच्छा हो जाता है। इमेजिन करो आप मेरे वर्ड्स पे भी कंसंट्रेट कर रहे हो एंड साथ में आप ये वाला भी खेल रहे हो। दिन बाजू में ये लोग क्या करते हैं पता है, बाजू में एक इन्होंने बुक रखा है, वहां पे ये लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ऐसे टिक मार्क करते हैं, डन, ये बार मैं जीत गई, मैं जीत गई। मतलब इफ फॉर 2 or 3 मिनट्स टीचर ने नोटिस नहीं किया तो ये लोग एक राउंड जीत जाते हैं, ऐसा है रूल, ऐसा है गेम का। अगर 3 मिनट के अंदर मैंने डिस्टर्ब कर दिया कि यस मीत कैमरा ऑफ है, तो क्या, फील सो डिसअपॉइंटेड, शिट यार, 2 मिनट्स एंड इट वाज ऑलमोस्ट 55 सेकंड्स, 0.5 सेकंड से हार गया, 5 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड से हार। ठीक है, नेक्स्ट अपन ये गेम भी एक दिन खेलेंगे, एक दिन लेक्चर नहीं रखेंगे, खाली ये गेम खेलेंगे, कैमरा ऑफ कैमरा ऑन वाला, बहुत मजा आएगा। इमेजिन करो ऑफलाइन में आप कैसे खेलोगे गेम, ऑफलाइन में ऐसे कर दोगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ये वाला मजा आएगा। ऑफलाइन सबको बुला के बोलेंगे ये वाला गेम खेलो, चलो स्टार्ट। You have to bring face mask, पूरा face mask करने के लिए, not just the nose and mouth. Okay, चलो students, I'll go ahead and next segment में जाते हैं। Okay, it is already 12:26, 12:26, no problem. Last 4 minutes. So physical properties मुझे बाकी था, एक physical properties करना था alkanes का। Once this is done, your alkane part is over. Okay, students, physical properties के बाद alkane part over हो जाएगा। Now, how many of you have textbooks? Please tell me, किस किस के पास textbook आ गई है? I hope आपको PDF भी मिल गया होगा textbook का, है ना? PDF आया सबके पास? If not, then Yes. Cash 25 Science Academy का जो Telegram channel है, वहाँ पे आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो। You can download the PDF also, ठीक है? अगर आपके पास PDF आ गया, नेट पे आप जाके सर्च करो तो भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां भी आई पोस्ट, ठीक है, कोई इशू नहीं। सो क्या करना है आपको, आई विल टेल यू पेज नंबर स्टूडेंट्स, यू हैव टू विजिट दीज पेजेस, जाके रीड करो एक बार, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या कवर किया है, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन पेज नंबर्स, पेज नंबर्स नोट डाउन कर लो। पेज नंबर नोट डाउन कर लो, चलो। सो टेक्स्ट बुक का आपका पेज नंबर कौन से आपको देखने हैं, जो मैंने कवर कर लिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर वी आर डूइंग स्टूडेंट्स, पेज नंबर 233, 233, 234, 235, देन 236 आपको स्किप करना है, अभी 236 आपको नहीं करना है, ठीक है। पेज नंबर 236 आपको नहीं करना है। देन 237 you can do it, 238 you can do this page also, that's it। 238 पेज नंबर पे you've been given uses of alkanes also, that you can do by yourself। uses of alkane पेज नंबर 238 पे। Is this clear students? 238 तक आपको जाना है, alkane section खत्म हो गया आपका।
So 233 से लेकर 238. Should I write it on the screen also? Page number 233 से लेकर 238. This is entire alkane segment. Uses you have to do on your own. ठीक है, uses आपको learn करने हैं. Except page number 236. 236 पेज नंबर आपको नहीं पढ़ना है. 236 पे एक टेबल दिया and everything has been given that you don't have to study. तो मुझे इसका डाउट मत पूछ लेना सर 236 पे ये क्या है सर आपने पढ़ाया नहीं. ठीक है, सो प्लीज यहाँ पे फोकस करो, सबके सब यहाँ ध्यान दो. 236 पेज नंबर मैंने अब तक नहीं कवर किया है. रेस्ट ऑल यू हैव टू कवर एंड आई नीड नोट्स ऑफ ये सारे पेजेस का प्रॉपर एक नोट्स मुझे चाहिए. जो आपने पहले रिएक्शंस लिखे थे वही उठा के पीडीएफ मार के मत भेज देना. ठीक है, कलरफुल तरीके से अच्छा फ्लो चार्ट पैटर्न में ऐसे लगे किसी ने नोट्स बनाया है. व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मींस व्हाट, कार्बन मींस व्हाट, देन क्लासिफिकेशन मस्ट टेबल बनाओ अच्छे से, देन एक एक प्रिपरेशन मेथड लिखो. हाँ बोल ना, ग्रुप पे भेजना है ना? ग्रुप पे भेजना है. यस, नोट्स रेडी कर लेना है आपको. एंड एवरी सिंथेसिस मेथड स्टूडेंट्स, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है ना सिंथेसिस देन मेथड एक अलग कलर से, वैसे आप भी ट्राई करो कैपिटल में लिखो मेथड का नाम, देन नीचे हर मेथड का दो एग्जांपल. सिंथेसिस में एटलीस्ट एवरी मेथड शुड हैव 2 एग्जांपल्स. एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक का लो, एक एग्जांपल आप खुद का लो. एंड नेमिंग भी करना साथ में, बिना नेमिंग के मत भेज देना. ठीक है, तो ये कंप्लीट नोट्स आपको बनाना है अल्केन सेक्शन का, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लास्ट वाले पेज पे मेंशन कर देना फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसको ब्लैंक रखना. हम नेक्स्ट पेज में कवर करें तो देन यू कैन ऐड. ओके, आई नीड दिस नोट्स बाय टुडे इवनिंग. आज इवनिंग या आज रात के पहले भेजा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. कंप्लीट नोट्स ऑफ अल्केन सेक्शन शुड कंटेन एवरीथिंग. एंड लास्ट पेज पे क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस. लास्ट पेज पे क्या होगा, जो मैंने आपको एक स्क्रीन पे बनाया पता है अल्केन के सिंथेसिस के मेथड, और उसी पेज में मैंने रिएक्शंस भी लिखा था. सो वैसा आपको एक पेज पे बनाना है. समझ में आया? लास्ट पेज पे आप क्या बनाओगे, पूरे चैप्टर का बनाओगे कंक्लूजन लास्ट पेज पे. सो उसी पेज पे ये वाला देखो, ये वाला याद आ रहा है आपको, ये जो मैंने ऐसे बनाया था, ये देखो अल्केन आप लिखोगे पेज के बीच में, देन आप एरो बनाओ टू शो सिंथेसिस, देन यू ड्रॉ एरो टू शो रिएक्शंस. तो स्केच पेन या मार्कर ऐसा कुछ यूज करो प्रॉपरली एंड ऐसा बना के दिखाओ मुझे. बट आपका क्या फर्क रहेगा कि आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रिएक्टेंट रिएजेंट सब लिखो एवरीथिंग. जैसे मैंने आपको रिवीजन करा रहा था तो मैंने सारे रिएजेंट नहीं लिखे थे, तो आप भी वो शॉर्टकट मत ले लेना, आपको सब कुछ लिखना है. इज दैट क्लियर? होमवर्क पार्ट क्लियर है सबको? होमवर्क पार्ट क्लियर है सबको? वेरी गुड. Now you can turn off your camera. Also, you can leave the meeting. You have all the liberties. Okay. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.